Good morning to all of you. Very good morning. Our session, today's session with Dr. O.P. Rishi sir. Dr. O.P. Rishi sir is the Associate Professor in Department of Computer Science and Informatics, University of Kota. He done PhD and MTech in Computer Science. His research and work experience is around 25 plus years experience. He published many research papers in national and international journals and conferences. His research interested is artificial intelligence, intelligence system and CBR, software system and agent technology, cloud computing and information security. Now I warm welcome to Dr. O.P. Rishi sir for start the session. Namaskar. Namaskar, sir. Thank you, Madhu Sahab, for Thank you, sir. giving a wonderful introduction of myself. Basically, I'm not this much of experienced person. No, sir. You have detailing my candidature. So, before starting my lecture, I would like to discuss exactly what is IoT. You have already done within last 3-4 days, and various dimension of Internet of Things. I hope you already done on this domains and categories and etc. etc. Now we will focus on what are the directions of research in IoT. So before proceeding on this lecture, just I want to discuss something, and my lecture is just discussion based. Exactly, this is not what I want. I want to discuss something with you, not a one-side lecture. So I hope every member is appreciate this approach. Okay. Yes, sir. Yeah. So now suppose to know the directions of IoT, let us consider we are sitting on our table and chair and assume that I want to attend this lecture from Australia along with my lecture. And as soon as I just have conceptualized this thing and the lecture is available on my screen, then what will you say? मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैठने के साथ ही इस लेक्चर के साथ में मुझे कंपैरेटिव लेक्चर है, वो किसी प्रोफेसर जो कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं उनका एक लेक्चर और अटेंड करना है, और ये just I am thinking about all these things and parallel that lecture is popped up on my system. So in that case, how it come possible? ये कल्पना है, और इस कल्पना को जो हमारा एक perception है, that is true, that can be made true by the IoT. Participants, please. So I allow the mic for all the participants. Yeah. And allow the wave camera also, sir. Yeah, definitely. Okay. Basically, in the research, without discussion, that is not possible. Yes, sir. If I deliver something, and that is one directional, so that is not fruitful for the participants. This is my assumption. Yes, sir. This is not a research. Yeah. Please participate, all the participants continue with this session. This is the research session. So you can ask exactly what you want. You want a lecture or you want a discussion? First of all, this is the question. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, participant, please, exactly what you want. You want a simple lecture and you want a discussion. If you want a lecture, then I just start presenting my lecture. And if you want a discussion, then we just continue the discussion with the certain examples. There is no. Please
join with this session. Dear friends, please give your opinion. Exactly what you want. You want a Yes, sir. simple lecture or you want a discussion? If you want a lecture, then there's no okay. Just I present my slides and elaborate that. Otherwise, you want a discussion, then okay. Please tell me. Okay. No answer from your side, then I start my presentation. Okay, sir. Just a moment. I'm just opening the. Okay, sir. So, as today's lecture, directions of IoT research. So first of all, just we know first of things, what is Internet of Things? And as you all are aware, Internet of Things means the system is interrelated computing devices. And that devices may be mechanical or maybe some digital machines or maybe a certain objects like cameras or sensors or maybe some human beings like animal or a people. So all these are if they are connected with the unified tag, then this kind of technology means by the help of the tag or by the help of the sensors, they can communicate with each other or they can transfer data over the network without requiring human to human interaction or human to computer interaction or device to device interaction. They can share the data, they can interact with each other. So this kind of technology is the Internet of Things. Things means here exactly maybe the human being or maybe some object as I discussed. That may be a camera or that may be a sensor or that may be some handheld device or something else like a smartwatch or etc. Or maybe a certain chip. So all these are the things that may be considered as a thing. So Internet of Things is what exactly there are a certain system and all are that system containing computing devices. They are interrelated with the help of a unique identifier or unique tag, and with the help of the tag they can communicate with each other. So this is the simple concept of Internet of Things. This is the introductory part. And how does it works means the in IoT, this is a web enabled smart devices, and that is embedded system such as a processor or a sensor or a communication hardwares that collect or that through which these devices you can send a message or you can send a communication uh, signals to the other device, and based on that uh, message the devices communicate with each other. Okay, so this is the working of IoT, and this is the simple example of IoT system. Within that, there are so many devices are connected, like antenna of the particular device is connected, or maybe a microcontroller may be connected with the help of IoT hub, or maybe a certain sensor or certain camera may be connected with the IoT gateway or IoT hub. So devices like a sensor or antenna or microcontroller are considered as a devices for the collecting data. So these are the data collection tools, means a sensor through which you can collect the data, through a camera you can collect the data or capture the data, or through antenna you again capture the data from the environment, or through a microcontroller you capture the data, you send it to the IoT hub or IoT gateway, where you collect data and transfer it to the another devices for analyzing the data or to take a certain action on the data captured from the environment. So there is a 3-layer architecture. So first layer through which you collect the data, second layer from where you just collect after capturing the data, you collect it and you just transfer data to the certain software or a certain hardware that through which you analyze the data or
take action on the data. So this is the third layer. And for the analyzing purpose, you might be possible you have a software interface or a software interface on your handheld devices like a smartphone or tab or even your smartwatch like that. Or for analytic purpose, you have a certain applications, and these application may be a scientific application, that may be a social application, or that may be any business applications. And along with that, we have a backend system that store the entire application for the analysis purpose. So these are the IoT system example, okay, how IoT work within this particular environment. So now the next thing is, what are the benefits of IoT for the organization? For the research purpose, exactly we have to know about exactly in which area IoT work and how it will be useful for that. So for that purpose, we have to understand the benefits for the organizations. Within the different organization, maybe a organization is a government organization, or maybe a private organization, or maybe a company, or maybe a some other kind of organization. So how IoT can be helpful for the organizations? So with the help of IoT, we can monitor the overall business processes. With the help of different data capturing devices, we can capture the data for the organization. We can analyze it and store it for the future purpose. By this way, we just for the monitoring purpose, for the controlling the business processes, we can use the IoT. Second benefit is it will improve the customer's experience. For example, this is we have an educational institution, and our customer is our students or the parents. So if they want to get information from our side, so IoT can be very helpful for them. Exactly whatever information we store on the system, and they can capture this captured information can be displayed as per the customer's need, means as per the students' need, as per the parents' need, that can be displayed on the different devices. And exactly that devices capture the data as per the parameters provided by the students and their parents. So this will improve the customer's experience. Even they can give the feedback to the organizations or institutions, what kind of data they needed and what kind of information they needed, and how they are much benefited with the information from the organization. So by this way, they can improve the customer experience. And the third major benefit is save time and money. Exactly what I want, what kind of information I want, I immediately receive this kind of information with my smartphone or my smartwatch or by any of the handheld device. Then by this way, I just save my time and money. Either this is the one way, and another, the second way is what I have to approach the particular organization and ask table to table or person to person for getting the particular information. This is another mechanical or manual method. In place of that, we just log in a particular system, and after that, the particular sensors capture the data as per the desired need of the customer, and that is provided to the user. And similarly, the next benefit is it will enhance the employee's productivity. Definitely, the productivity, exactly for the productivity, we need a different kind of data sets and different time of for the different purposes, and in the different time intervals. So at that moment, if what exactly we needed, that is available on my table or on my system or on my device. So in that case, excuse me, sir. Yeah. Sir, your PPT is stable. PPT not move, sir. Only first PPT show direction in IoT research. So okay, I have just stopped the sharing and again sharing. I don't know. Yes. Okay. सर स्लाइड्स मूव नहीं कर रही है सर. यस सर. हाँ सर. एक मिनट में दोबारा से कर रहा हूँ. हमें यही सुनना था सर, आप चेक कर रहे थे कि भाई पीपीटी आप देख रहे हैं. नहीं चिंता मत करो सर. तभी माइक मैंने चालू कर रखा था, बस देखते हैं कोई.
अब विजिबल है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, अब मूव हो रही है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, अब थैंक यू। क्योंकि आप लोगों ने एक प्लीज प्लीज पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने पहला वाला मोड है वो सेलेक्ट किया, तो प्लीज आप अपने माइक को ऑफ कर दें। ओके सर, I disable all the one. Yeah, I'm audible to all of you? Sir, audible sir. Okay. तो फिर भी देखिए, आपको जब भी डिस्कशन की जरूरत है प्लीज आप रेज योर हैंड एंड आप Yes, मुझसे sir. सवाल कर सकते हैं, लेकिन Okay. फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपका डिस्कशन के लिए मैक्सिमम हो, लेकिन चूंकि आपने किसी ने भी नहीं कहा कि भाई हमें डिस्कशन करना है, तो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड कि भाई अब आप माइक ऑफ कर दीजिएगा। Okay sir, I disable all. ओके, तो अब हम लोग आपको बीच में लगता है, प्लीज रेज योर हैंड फॉर द डिस्कशन। एंड सर प्लीज, माथुर सर प्लीज आप एक बार Yes, देख sir. लीजिएगा, क्योंकि मैं Okay, sir. कई बार क्या होता है कि लेक्चर लेते हुए मुझे ध्यान नहीं रहे, तो Okay sir, okay. ओके ना, ये Thank you. आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। नहीं सर, कष्ट नहीं है सर। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी एडवांटेज के बारे में बात कर रहे थे कि आईओटी के एडवांटेज क्या हैं, या उससे पहले कि आईओटी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये आपकी स्लाइड, अभी बेनिफिट्स ऑफ आईओटी के बारे में हम लोग डिस्कशन में थे, तो वो स्लाइड आपके पास में है। तो हमने अभी जो 3-4 पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस किए कि भाई जो आपका बिजनेस प्रोसेस है, विद द हेल्प ऑफ आईओटी वी कैन मॉनिटर इन अ बेटर वे, and IoT improve the customer experience as we have discussed, and it will save the time and money। कि भाई एक तो आपके पास तरीका है कि किसी पर्टिकुलर विंडो पे जाएं, और विंडो पे जाने के बाद में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए विंडो पे जाके पूछें, फिर दूसरी विंडो पे जाएं, और in place of that entire information you capture with the help of a certain sensors or certain camera or other devices on your table। तो इस तरह से आप टेबल टू टेबल या एक विंडो टू विंडो जाने के बजाय आप केवल डेस्कटॉप के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ आईओटी आपको मिल सकती है। तो ये आपका टाइम और पैसा है वो दोनों को बचा रहा है। इसी तरह से आपकी जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है, कि आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट पे पर्टिकुलर डेटा चाहिए, और वो डेटा आपको विद द हेल्प ऑफ आईओटी अगर आपको मिल जाता है, तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होती है। कि लेट अस सपोज आपने कोई भी फील्ड डेटा है, आप रिसर्च कर रहे हैं हेल्थ केयर में, और हेल्थ केयर में रिसर्च के वक्त आपको कोई एक रियल टाइम डेटा चाहिए, और रियल टाइम डेटा के लिए आपने क्या किया हुआ है कि यू हैव इम्प्लांटेड अ सर्टेन सेंसर्स और अ सर्टेन कैमराज और सर्टेन ऑडियो डिवाइसेस विद इन द पेशेंट्स नियर टू द पेशेंट्स बेड। आप जो पेशेंट है उसके बेड पे या उसके आसपास लगा रखे हैं, और आपको पर्टिकुलर टाइम पे उसका टेम्परेचर चाहिए, या उसके बॉडी के जो चेंजेज हैं, या उसके ब्लड डायग्नोस्टिक से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, तो वो अगर आपने कुछ इस तरह की चीजें आप बॉडी में इम्प्लांट कर रखी हैं, वो सेंसर्स हैं कि वो आपका ब्लड का सैंपल उस वक्त लेगा, देन उसका जो भी टेस्ट रिजल्ट्स हैं विद द हेल्प ऑफ आईओटी मींस विद द नेटवर्क वो आपको अवेलेबल होता है। तो आप इमीडिएटली, आपको जो कोई डिसीजन लेना है, तो डॉक्टर में टेक अ डिसीजन फॉर द पेशेंट इमीडिएटली। तो ये आपका इनडायरेक्टली एक प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहा है, और नॉट ओनली एम्प्लॉइज इन द ऑल डायमेंशंस आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। अगर आप एग्रीकल्चर में हैं, और एग्रीकल्चर में आपको फील्ड का डेटा लेना है, और वहां पे फील्ड पे आपके पास में यू हैव इम्प्लांटेड और यू हैव deployed lots of cameras over there, or maybe a sensors over there, and there is a one way you go there, and after that collecting the data, and the second way by the help of the sensor or camera you collect that data on your table। तो ये आपका कुछ टाइम भी बचा रहा है, और डेफिनेटली बाय दिस वे दिस प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव। तो आईओटी बाय एंड लार्ज हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहेंस करता है। एंड ये हमारे जो भी डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, उन बिजनेस मॉडल्स को हम IoT के साथ we can integrate with the help of a certain software or certain intermediate interfaces,
उन इंटरफेसेस के थ्रू हम लोग उनके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं या बिजनेस मॉडल्स को हम दूसरे उसके साथ में अडेप्ट कर सकते हैं। तो IoT कैन आल्सो हेल्प इन ऑल दीज थिंग्स। और जो हमारे बिजनेस डिसीजंस हैं, क्विक डिसीजंस जिसको हम कह सकते हैं कि एट दैट जो भी हमें डेटा मिल रहा है फील्ड से या रियल टाइम डेटा मिल रहा है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेक डिसीजंस एंड quickly manner. So it will make a better decisions, better business decisions, or definitely the last one is what generate a more revenues. कि भाई आपका टाइमली, अगर आपको डेटा अवेलेबल है, टाइमली आपके पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप क्विक डिसीजन लेंगे। क्विक डिसीजन के बाद में आपके जो बिजनेस एक्सपेंशन है या बिजनेस में जो बेनिफिट्स हो सकते हैं वो आपको मोर एंड मोर रेवेन्यू बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो बाय दिस वे ये जो भी आपके मेजर बेनिफिट्स हैं, इन मेजर बेनिफिट्स के बिहाफ पर एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी encourages to use or use IoT in their business approaches, in a business जो टूल्स के जैसे या बिजनेस स्ट्रेटेजीज में IoT का यूज किया जा सकता है। सो बेस्ड ऑन दीज बेनिफिट्स, दीज आर द एडवांटेज। ये आप लोगों ने पिछले जो भी लेक्चर्स होंगे, बाय एंड लार्ज आप लोगों ने इनके बारे में आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा होगा। मैं जस्ट एक क्विक रिव्यू आपको दे देता हूं कि यू कैन एबिलिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर, एनी टाइम एंड एनी डिवाइस। IoT आपको हेल्प करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी डिवाइस से आपको मिल सकती है। तो उसके लिए फैसिलिटेट आपका IoT कर रहा है। आपका जो कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ में आपके इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन है, दैट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ IoT। अब कोई भी डेटा पैकेट्स हैं, कनेक्टेड नेटवर्क में है, आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बाय दिस वे यू कैन सेव टाइम एंड मनी एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। एंड ये आपको IoT है वो आपके जो बिजनेस प्रोसेसेज हैं या आपकी जो क्वालिटी है बिजनेस सर्विसेज की, उनको ऑटोमेट करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और ये इसमें मिनिमम जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको मिनिमाइज हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IoT। So there are certain advantage, but there are again certain disadvantages. These are the major advantage, but disadvantage अगर आप देखिए, you just consider in the, as I take example of healthcare or example of agriculture. Let us suppose हमारे पास में 5 हेक्टेयर का एक फार्म हाउस है या 5 हेक्टेयर जमीन है, और वहां पे आपने बहुत सारे सेंसर्स डिप्लॉयड किया हुआ है, और सेंसर्स एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर आपका डेटा कैप्चर कर रहा है, और कैप्चर करने के बाद में दैट इज सेंडिंग थ्रू हब टू द स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस हर 5 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद, हर एक इंटरवल के बाद में वो डेटा स्टोर कर रहा है। तो हाउ मच ह्यूज डेटा यू आर स्टोरिंग विद द हेल्प ऑफ दिस। अब उसमें डेटा जो 10 सेकंड के बाद या मान लीजिए आधा घंटे के बाद में भी डेटा स्टोर हो रहा है उस पर्टिकुलर डोमेन का, तो कितना डेटा स्टोर हो रहा है, उस डेटा की जो यूजफुलनेस कितनी है, वो हमको ये देखनी है कि भाई उस डेटा का हम करेंगे क्या। हाफ आवरली या हाफ आवरली आप स्टोर कर रहे हैं, अगर कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, चाहे वो वेदर से रिलेटेड हो या वहां के एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, तो मेजर चेंजेस अगर नहीं आ रहा है तो वो यूजफुलनेस नहीं है। तो मीन्स आपके पास में, अच्छा पहली चीज तो ये हो गई कि उसका जो डेटा है दैट इज कैप्चर्ड इन अ ह्यूज अमाउंट। सेकंड, नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड, मतलब कितने सेंसर्स वहां पे इम्प्लांटेड होंगे या ये कह दीजिए डिप्लॉयड होंगे, और डिप्लॉयड डिवाइसेस से आप उनका आपस में कम्युनिकेशन होगा, तो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स वहां पे डेवलप होगा। तो ये उस डिवाइसेस के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको मैनेज करना, डेटा को कैप्चर करना, और कैप्चर करने के बाद में डेटा को एनालिसिस करना, देयर इज अ वेरी टीडियस जॉब। तो ये इस IoT के साथ में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू है, और यहीं से हमारा रिसर्च भी शुरू होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में इस तरह का ह्यूज डेटा है, उस ह्यूज डेटा को हम कौन सा यूजफुल है, कौन सा यूजफुल नहीं है, कौन से वक्त कौन सी इवेंट ट्रिगर हुई, और ट्रिगर्ड डेटा हमें चाहिए, बाकी का यूजफुल डेटा नहीं है, तो उस डेटा को हम छोड़ सकते हैं। तो ये एक हमारा रिसर्च का डायमेंशन भी हो सकता है कि भाई हमको कौन सा डेटा है जहां एक पर्टिकुलर इवेंट ट्रिगर हो रही है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, या उस पर्टिकुलर सेंसर के सराउंडिंग्स में, या सेंसर के
एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर इवेंट के ट्रिगर होने पर वही डेटा कैप्चर हो, बाकी डेटा है वो हम ना कैप्चर करें। तो ये एक हमारा एक रिसर्च डायमेंशन है जो कि हम लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, ह्यूज डिवाइसेज हैं। अब ह्यूज डिवाइसेज हैं तो दे आर नेटवर्क। अब नेटवर्क में कोई भी पर्सन है, एक ये भी तो हो सकता है कि एनीबॉडी कैन हैक योर नेटवर्क एंड कैप्चर द डिवाइसेज एंड माइट बी पॉसिबल विद द मैलिशियस इंटेंशंस दे प्रोवाइड अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप तो पर्टिकुलर लोकेशन पे है नहीं। तो उस वाली कंडीशन में आपके नेटवर्क को हैक किया और जो सेंसर से एक रियल डेटा आना चाहिए था, रियल डेटा के बजाय आपके पास में फॉल्स इंफॉर्मेशन आ रही है। वो इंट्रूडर या जो भी आपका हैकर है वो आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस वाली कंडीशन में आप इसको कैसे ओवरकम हो सकते हैं, तो एक ये मेजर इशू है और इस मेजर इशू पे हम लोगों को आगे फर्दर डिस्कशन में आना है, या हमें फर्दर रिसर्च का जो एस्पेक्ट्स है उसको कंसीडर करना है कि हम सिक्योरिटी के बारे में बात करें या प्राइवेसी के बारे में बात करें या हम ट्रस्ट के बारे में बात करें। तो ये एक मेजर चैलेंज भी होगा और इस चैलेंज के साथ में इन इश्यूज पे हमको कुछ रिसर्च डायमेंशन भी हमको मिलने वाले हैं। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज है वो कि भाई आपका मैसिव नंबर, जैसा मैंने कहा कि मैसिव नंबर ऑफ जो सेंसर्स हैं या मैसिव नंबर ऑफ डेटा सेट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स है जो आ रहा है, तो जो मिलियंस और बिलियंस हैं तो डिवाइसेज हैं, उनसे को कैसे हम मैनेज करेंगे, हाउ टू मैनेज ऑल दीज डिवाइसेज। और जो डेटा आ रहा है, डेटा स्ट्रीमिंग हो रही है, उस डेटा स्ट्रीमिंग को कैसे मैनेज करेंगे, एक ये भी डिसएडवांटेज है। और अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई बग आ जाता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर कोई इंट्रूडर है और या कोई आप हैकर था, हैकर ने नेटवर्क हैक किया और उसके बाद में उसने जो सिस्टम को है वो बगी सिस्टम बना दिया है, तो उस वाली कंडीशन में जितनी भी डिवाइस कनेक्टेड हैं वो might be possible they are corrupted or might be possible they give a false information or a corrupted information like that। तो ये भी हमारे लिए एक मेजर इश्यू होगा, चैलेंजेस है जो कि आईओटी के लिए अभी तक एक डिसएडवांटेज के फॉर्म में देखा जा रहा है। बट दिस इज अगेन अ रिसर्च चैलेंज। अब मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये डिसएडवांटेज और ऑलवेज इट विल बी अ डिसएडवांटेज, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली विद द हेल्प ऑफ डिसएडवांटेज वी जस्ट फाइंड आउट दैट रिसर्च एस्पेक्ट्स कि भाई इनसे हमको क्या फर्दर हम रिसर्च कर सकते हैं। एंड लास्ट जो डिसएडवांटेज है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे है, कि आईओटी के लिए हमारे पास में कोई भी स्टैंडर्ड अभी तक टिल नाउ देयर इज नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर कंपैटिबिलिटी। देयर आर सो मेनी डिवाइसेस, सो मेनी मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिवाइसेस। एक कैमरा है और कैमरा बनाने वाले थाउजेंड्स और मिलियंस और आपके पास में अराउंड द वर्ल्ड वाइड हो सकता है मिलियंस कंपनीज हैं वो कैमरा बना रही हूँ। अब उनके बीच में क्या कंपैटिबिलिटी होगी, हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, हाउ दे शेयर डेटा इफ दे नीडेड। तो इन दैट केस उनका कोई स्टैंडर्डाइजेशन अभी तक है नहीं, या कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो कि हर एक डिवाइस है या एक कैमरा है, वो कैमरा दूसरे के साथ में, एक सेंसर के साथ में या किसी ऑब्जेक्ट के साथ में किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, और उसका कम्युनिकेशन कोई प्रोटोकॉल हो या कम्युनिकेशन कोई स्टैंडर्ड हो। तो वो अभी तक कोई स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म हमारे पास में नहीं है। तो रिसर्च का एक जो डायमेंशन है वो ये भी है कि हम जितनी भी आईओटी डिवाइसेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका कोई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स डिजाइनिंग में हम लोग काम करें। हम लोग का मतलब रिसर्चर्स जो हैं दे विल वर्क ऑन द standardization of the protocol, standardized mechanism or standardized framework for IoT or standardized architecture for the IoT. When multiple device or multiple type of device or multiple category of devices are connected, then for the communication purpose हम लोगों को कुछ protocols, कुछ rules हमको बनाने चाहिए या बनाने पड़ेंगे इन द फॉर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स। तो ये भी एक रिसर्च एस्पेक्ट्स है फॉर द आईओटी। तो दीज आर द डिसएडवांटेज। नाउ आईओटी स्टैंडर्ड्स हैं कि वर्ल्ड वाइड जो आईओटी है वो स्टैंडर्ड आपके पास में है, तो IPv6 प्रोटोकॉल है जो लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, उसके लिए यूज होता है। इसी के अलावा जो आपका जिग्बी है, जिग्बी इज अनदर स्टैंडर्ड
जो कि IEEE 802.15.4 स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो कर रहा है। और जो भी जिग्बी अलायंस के जो भी क्रिएटेड डॉट बॉट्स हैं वो इसको फॉर दे शॉर्टली यूज फॉर द नेटवर्क। एंड देयर आफ्टर लाइट ओएस इज अनदर स्टैंडर्ड्स। ये आप लोगों ने जो भी पहले के लेक्चर्स होंगे उनमें आप लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस तो नहीं करूंगा। बट लाइट ओएस है जो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सेंसर वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए है, उसको सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन्स है, जो जितने भी वियरेबल डिवाइसेस हैं उनके लिए हैं, या स्मार्ट होम्स है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, या इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स है, IOV। तो वहां पे लाइट ओएस जो स्टैंडर्ड है वो नॉर्मली यूज करते हैं। और M2M है जो मशीन टू मशीन सर्विस लेयर है, तो वहां M2M है स्टैंडर्ड है, वो यूज किया जाता है। और इसके बाद में जो DDS है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है, तो वो M2M जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है या स्टैंडर्ड है उसको यूज किया जाता है। इसके बाद में जो एक अनदर स्टैंडर्ड इज दैट AMQP, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल है, जो कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड अभी यूज कर रहे हैं एज एन IoT। तो ये भी हम करते हैं, और ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म के लिए यूज करते हैं। वैसे IoT नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के लिए है, बट इन अ क्लाइंट सर्वर मैसेजिंग जो IoT डिवाइसेज है जहां इस तरह का मैकेनिज्म है, तो वहां पे AMQP है, वो स्टैंडर्ड हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। इसी के अलावा हमारे पास में COAP भी है, जिसको कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। दिस इज अनदर स्टैंडर्ड्स। और इसमें यही है कि जो लो पावर जो कंप्यूटिंग कंस्ट्रेंट्स हैं, डिवाइसेज हैं, उनको आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे उनके मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड्स है, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, वो उनके लिए है। इसके अलावा LORA WAN है, तो लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क के लिए नॉर्मली इसको यूज किया जाता है। और इसमें जब आपके पास में जो लो पावर डिवाइसेज हैं, और वो जैसे जहाँ पे एक वाइड एरिया नेटवर्क है, मींस जैसे स्मार्ट सिटीज है, और स्मार्ट सिटीज के अंदर आपको पास में मल्टीपल डिवाइसेज हैं और मल्टीपल लोकेशंस पे दे हैव इंस्टॉल्ड और डिप्लॉयड, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क जो स्टैंडर्ड है उसके थ्रू हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके बाद में जो हमारा है IoT फ्रेमवर्क है, IoT फ्रेमवर्क में वेब अमेजन सर्विसेज हैं, जिसको कि हम AWS IoT के रूप में भी कंसीडर करते हैं। तो ये यहाँ पे जो AWS क्लाउड्स हैं या कनेक्टेड डिवाइसेज हैं, उसके लिए ये हम नॉर्मली अमेजन वेब सर्विस फ्रेमवर्क है वो अभी यूज कर रहे हैं। बट स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन द फ्रेमवर्क ऑल्सो, कि अभी जो रिसर्च के लिए है IoT फ्रेमवर्क जो है, जनरल फ्रेमवर्क जिसकी जरूरत है, वो अभी डिजाइनिंग करना है। अभी हम ये कह दें कि दिस इज द स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, तो ये कहना गलत होगा। बट हाँ, फॉर द सर्टेन सर्विसेज, अमेजॉन वेब सर्विसेज जो फ्रेमवर्क है दैट कैन बी यूज्ड। इसी तरह से आप जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं IoT प्लेटफॉर्म में, तो वो जो एप्स के थ्रू अगर आपको करना है, तो ARM MBD IoT है, उसके थ्रू आप जो फ्रेमवर्क है उसको आप यूज कर सकते हैं, या एज ए टूल इसको आप इसकी सर्विसेज को आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर फ्रेमवर्क। और जो माइक्रोसॉफ्ट का अजार है, दिस इज अगेन अ फ्रेमवर्क। ये आप लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ सुना भी होगा, माइक्रोसॉफ्ट अजार है, और इस पे बहुत सारे तरह के जो जो ऑपरेशन हैं, या बहुत सारे तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं, जो हम उनको एक साथ कॉमन प्लेटफॉर्म एज ए विजुअलाइज कर सकते हैं, ऑपरेशंस को विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं। ठीक है। इसके बाद में जो आपका गूगल विलो या वेव है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये रैपिड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IoT एप्लीकेशंस के लिए है, कि मींस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कोई भी एप्लीकेशन है गूगल प्लेटफॉर्म पे आप डेवलप करके आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके जो जैसा कि इसका है, गूगल्स का जो वेलियो है, एक बैकबोन है, दूसरा आपका वेव है। तो वेलियो है वो एंड्रॉइड बेस्ड है आपका, और जो वेव है वो IoT ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो आप डेवलप करेंगे, और बिटवीन द डिवाइस एंड क्लाउड यू कैन स्टोर योर डेटा। जो भी आपका डिवाइस से डेटा आ रहा है या ऑब्जेक्ट से आपका डेटा आ रहा है, वो आप इसको क्लाउड पे स्टोर करेंगे, और क्लाउड के थ्रू आप डेटा को एनालाइज करके फर्दर आप यूज कर सकते हैं।
तो ये आपका यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है गूगल बेलियो एंड वेव है वो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जो कैल्विन है, कैल्विन है आपके पास में ओपन सोर्स IoT प्लेटफॉर्म है और बेसिकली ये एरिक्सन का प्रोडक्ट है और एरिक्सन ने ये आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में जो भी डिवाइसेस कनेक्ट एनवायरनमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो डिवाइसेस आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हाउ दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, हाउ कैन दे शेयर डेटा विद ईच अदर, सो दैट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कैल्विन। सो दिस इज अगेन ओपन सोर्स IoT प्लेटफॉर्म। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये ओपन सोर्स है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में डिवाइसेस एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं, इवन आप कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं तो वो अभी आप एक दूसरे के साथ में रन टाइम एनवायरनमेंट में आप एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं या उनका जो डेटा है वो यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू द IoT और यहीं से हमारा जो रिसर्च का जो प्रोसेस है या रिसर्च यहीं से हमारा शुरू होता है कि ये जो भी चीजें अवेलेबल हैं और इन अवेलेबल चीजों के अलावा हम क्या फर्दर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हैं जो कि हम IoT को पॉसिबल करती हैं। IoT जो इतना विद इन लास्ट 20 इयर्स IoT 2000 ऑनवर्ड्स IoT के बारे में जो कॉन्सेप्ट आया इन 2000 एंड आफ्टर दैट 2002 कॉन्सेप्ट मैच्योर होना शुरू हुआ और अब तक आप देखिएगा कि बहुत सारे एरिया ऐसा है जहां IoT सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड है। तो ये जो टेक्नोलॉजी के सक्सेस के पीछे जो कंपोनेंट्स हैं या जो चीजें काम कर रही हैं वो हैं आपकी लो कॉस्ट डिवाइसेज हैं या लो पावर सेंसर्स हैं, तो जिनके थ्रू आप डेटा कैप्चर करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एंड जिसकी वजह से IoT बिकम अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी। कि भाई इसमें इस टेक्नोलॉजी IoT के लिए हमारे पास में जो बैकबोन तो ठीक है नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क के साथ में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है उसके सेंसर्स, वो है उसके ऑब्जेक्ट्स और डेटा कैप्चरिंग डिवाइसेस। तो अब इसमें जो डेटा कैप्चरिंग डिवाइसेस हैं वो लो कॉस्ट होंगी, तभी आप मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल टाइम के लिए आप उनको डिप्लॉय करेंगे और डिप्लॉयमेंट के बाद में अगर उनसे टाइम टू टाइम डेटा मिल रहा है तो उसके लिए यू नीड अ पावर। तो वो पावर इज अ लो कंजम्पशन ऑफ पावर होना चाहिए या बैटरी जिसको कहते हैं बैटरी बेस्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि एनर्जी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए कि कैसे भी कितनी भी डिवाइसेज हो नेटवर्क में बट दे विल सेव एनर्जी। ओके, सो ये जो टेक्नोलॉजी है दैट बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ लो कॉस्ट एंड लो पावर सेंसर टेक्नोलॉजी, वन थिंग। सेकंड थिंग इज द कनेक्टिविटी between the devices, connectivity between the sensors, connectivity between the objects that is connected within IoT network. So ये connectivity again an important aspects, maybe that is Wi-Fi based or wired network or wireless network, but there should be a network through which they can communicate with each other, all the devices. फिर इसके बाद में जो डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है प्लेटफॉर्म है, उसकी वजह से भी ये आपके पास में जो ये टेक्नोलॉजी है दैट बिकम्स अ सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी इन दीज डेज। अब क्लाउड के साथ साथ एज कंप्यूटिंग एडेड द न्यू फेदर ऑफ और फ्लेवर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कि एज कंप्यूटिंग के ऐड होने से ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल होती जा रही है, क्योंकि इसमें पहले क्या है कि क्लाउड में डेटा स्टोर हो रहा है और क्लाउड का मतलब है कि मल्टीपल डिवाइस है और मल्टीपल डिवाइसेस का जो क्लाउड है वो देयर इज सम अदर प्लेसेस, तो उस वाली कंडीशन में डेटा स्टोर कहीं और हो रहा है और आपके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और कैप्चरिंग रिसोर्सेज और डिवाइसेज हैं वो कहीं और है। तो इसमें डिले या जो टाइम में जो डिले है कंप्यूटेशन का वो होता था, बट एज जो है कॉन्सेप्ट एज का आने के बाद में कि आप लोकली वहां पे जो डेटा स्टोर है वहां कर रहे हैं एंड द रेप्लिका इज स्टोर्ड इन द क्लाउड, तो आपका जो टाइम सेविंग हो रहा है और इस तरह से जो परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी और डे बाय डे बिकम मोर पावरफुल एंड पॉपुलर।
इसके बाद में जो नेक्स्ट IoT टेक्नोलॉजी है वो पॉसिबल होना है, वो है मशीन लर्निंग एंड एनालिटिक्स। कि मशीन लर्निंग, जैसे कि हम कहा कि दिस इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलिजेंट with the help of a certain programs or a certain tools or a certain techniques or a certain algorithms, your program or devices become day by day more intelligent. They capture data in an intelligent way, they share data in an intelligent way, they search data in an intelligent way, and they analyze, even the data can be analyzed in the intelligent way with the help of a certain agents. So ये जो लर्निंग है और एनालिटिक्स है, ये भी इस टेक्नोलॉजी को जो पॉपुलराइज करने में बहुत बड़ा इसका एक ये कह दीजिएगा रोल रहा है। और इसके बाद में एक और चीज है जिसको कि हम कहते हैं कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस with the help of AI how device communicate in a natural language। आपके पास में जो लैंग्वेज है, या तो टेक्सुअल कम्युनिकेशन उनके बीच में हो, कि राइटिंग आपने कोई भी आपने टाइप किया, कुछ टेक्सुअल कमांड आपने दिया और उसके टेक्सुअल कमांड के बिहाफ पर डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर, और या सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज जो है कि आपने कुछ बोला और बोलने के बाद में आपके डिवाइस अकॉर्डिंगली आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और डेटा कैप्चर करना शुरू करे और डेटा या उसका ऑपरेशन स्टार्ट करे। फॉर एग्जांपल, आप जैसे बहुत सारी आजकल डिवाइसेज हैं, सिंपल डिवाइसेज हैं कि प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, है ना। गूगल को आप या इको डॉट को आप बोलेंगे या सिरी को आप बोलेंगे कि सिरी प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, तो दैट पर्टिकुलर डिवाइस स्विच ऑफ the light of your room or your office like that। but यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि ये this is what, first of all, this is a communicational artificial intelligence, means you are communicating with the devices with the help of a certain instruction, that may be a oral instruction or that may be a written instruction, means textual आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या आप ओरल कुछ in a natural language processing in NL with the help of a natural language you are giving certain commands to the particular device and accordingly that device acting on that operation। तो ये आपका कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बट यहाँ पे फिर अगेन रिसर्च इश्यूज। पहली चीज तो हम ये समझ ले कि इसकी वजह से IoT है वो बिकम अ पावरफुल टूल और टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ अ कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम चाहते हैं कि हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे, अकॉर्डिंगली डिवाइसेस एक्ट करना चाहें, और इसी की वजह से जो आजकल हमारे कहते हैं स्मार्ट होम्स जो कॉन्सेप्ट है कि घर की हर डिवाइस को हम जैसे चाहें कंट्रोल कर सकें विद द हेल्प ऑफ अ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन पे हमने एक कमांड दिया, हम घर पहुंचे उससे पहले हमारा AC वो ऑन हो गया, या हम घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकले के बाद हमने एक कमांड दिया, वॉशिंग मशीन है वो ऑटोमेटिकली आपका जो वॉशिंग है वो स्टार्ट कर दे या वॉशिंग है वो स्टॉप कर दे। तो बाय दिस वे इधर वी हैव गिवन अ राइटिंग कमांड, मतलब आपने एक मैसेज पास किया या आपने उसको ट्रेन किया विद द हेल्प ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज एंड यू हैड गिवन अ इंस्ट्रक्शन इन अ नेचुरल लैंग्वेज एंड अकॉर्डिंगली योर डिवाइस जो कि आपसे काफी दूर है वो आपके ऑटोमेटिकली आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो ये दिस बिकम्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ IoT अलोंग विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोनों चीजें पॉसिबल हुई AI की वजह से, कन्वर्सेशनल AI की वजह से, ठीक है। तो ये एक मेजर एरिया हो सकता है या थ्रस्ट एरिया हो सकता है कि जहां पे हम लोग रिसर्च के बारे में सोच सकते हैं, और इसके बहुत सारे डायमेंशंस होंगे जो कि हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सो ये कुल मिलाकर आपके जो एरिया थे। इसके बाद में हम लोग IoT को कहाँ कर सकते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है बीइंग अ स्कॉलर, as I said earlier, I am not expert of this particular domain, I am also just like you, I am a scholar। तो मुझे ऐसा लगता है कि IoT कहाँ होना चाहिए, क्या डोमेन होना चाहिए, तो मुझे एक जो रामचरितमानस की चौपाई थी वो याद आती है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल।
वहां पे तुलसीदास ये कहते हैं कि भाई भगवान के बारे में जब जानने के लिए गए तो मुझे भगवान हर जगह दिखाई दिए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तिता, जिधर भी देखो मुझे भगवान ही नजर आ रहे हैं, या गॉड है, दैट इज वेयर आई वांट टू, मतलब जस्ट जहां पे भी मेरी नजर जा रही है वहां पे मुझे भगवान नजर आ रही है, तो हर जगह। तो उसी तरह से मुझे भी ये बिल्कुल यहाँ सटीकता के साथ कहिए कि भाई अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिसर्च के लिए अप्लाई करना है तो उसका कोई डोमेन फिक्स होना चाहिए? नहीं, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपके पास एक विजन और एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ रिसर्च होना चाहिए, तो आप उसको यूज कर सकते हो। या हम ये कहें कि आईओटी इन द करंट सिनेरियो, अरे भाई आप कहीं पर भी अप्लाई कर दीजिए आईओटी को, बस आपका एक उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, वो आप प्रॉपर करिए और उस टेक्नोलॉजी को आप अप्लाई करने की सोचिए, उसका फ्रेमवर्क, उसका आर्किटेक्चर और उनका जो भी डेवलप करना है, यू कैन यूज इन एनी ऑफ द डोमेन। इन एनी ऑफ द डोमेन मतलब कहीं पर भी ऐसा एरिया अछूता नहीं रह सकता जहां आईओटी को यूज नहीं किया जा सकता। आप जहां करना चाहें करें। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था ना कि एआई को कहां, वो सॉरी, आईओटी को कहां लगाना है? अरे आईओटी को आप एग्रीकल्चर में लगा दीजिए, आईओटी को आप मैन्युफैक्चरिंग में लगा दीजिए, आईओटी को सॉफ्ट फ्लोर मैनेजमेंट में लगा दीजिए, आईओटी को सीआरएम में लगा दीजिए, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में लगा दीजिए, आईओटी को आप क्लासरूम टीचिंग में लगा दीजिए, आईओटी को आपको कहाँ लगाना है, आपको किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करना है तो वहां लगा दीजिए, आईओटी को डिसीजन मेकिंग में लगाना है, हाँ आप लगा दीजिए आईओटी को, आपको हेल्थ केयर में लगाना है आईओटी को लगा दीजिए। तो आईओटी को कहाँ नहीं लगा सकते? तो ये कहें कि जो मैं यहाँ पे कुछ डोमेन आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उन डोमेन्स के बियॉन्ड भी डोमेन्स हैं जिनमें कि आईओटी को हम लोग यूज कर सकते हैं, और ये वो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं जो कि अभी एक्सप्लोर होना बाकी है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। तो आईओटी के लिए अभी कोई हम ये कहें कि दीज आर द फिक्स डायमेंशंस, नो, नॉट लाइक दैट। आप एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर करते जाइए और आप आईओटी को यूज करते जाइए टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पे कुछ डोमेन्स मैंने लिखे हुए हैं मेरी समझ के हिसाब से कि मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग आईओटी को यूज कर सकते हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या प्रोडक्शन लाइन मॉनिटरिंग के लिए हम लोग जो प्रोएक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए हम आईओटी को यूज कर सकते हैं। तो हम ये चेक कर सकते हैं क्विकली कि भाई कौन सा इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, या कौन इक्विपमेंट है उसमें क्या प्रॉब्लम है, कब इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है जो उसके वियरिंग टीयरिंग से रिलेटेड है। तो ये विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स हमको पता हो जाएगा कि हाँ देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम, तो फॉर द डायग्नोस्ट पर्पस कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफिकल्टी ना हो, या मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिले ना हो, या मशीन के वेयरिंग एंड टीयरिंग में कोई इश्यू आने वाला है, तो उससे पहले ही हमें पता चल जाए एंड टाइमली हम उसको हैंडल कर लें। तो वहां पे आईओटी हम यूज कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में आईओटी का एक बहुत मेजर रोल है। ऑटोमेशन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में हम लोग यूज कर सकते हैं आईओटी को। रिटेल में हम लोग यूज कर सकते हैं आईओटी को। और हम लोग पब्लिक सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में आपकी जो गवर्नमेंट ऑन यूटिलिटीज हैं कि भैया जैसे पानी से रिलेटेड चीजें हैं, पानी का है या बिजली का है, तो बिजली में कि भाई यहाँ फॉल्ट है या उसकी कंट्रोलिंग है या उसकी मॉनिटरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, या वाटर है तो वाटर की जो लाइन है, लाइन में कोई फॉल्ट डायग्नोस करना है या उसको मॉनिटरिंग करना है रियल टाइम, या उसको कंट्रोल करना है। तो जो इस तरह की स्कीम्स हैं, पब्लिक से रिलेटेड स्कीम्स हैं, तो या सीवरेज से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो वहां पे जो पब्लिक डोमेन्स है वहां पे आईओटी को हम लोग यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सर्टेन सेंसर्स। ओके। एंड हेल्थ केयर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हेल्थ केयर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, और वो जो आपका सिस्टम है उसको मोर कैपेबल बना सकते हैं कि भैया कौन पेशेंट आ रहा है, पेशेंट की लोकेशन क्या है, उसको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है, व्हील चेयर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या बेड की अवेलेबिलिटी है, बेड किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है, या व्हील चेयर की लोकेशन क्या है, व्हील चेयर वहां की अवेलेबिलिटी करवाना। ये सारी चीजें रियल टाइम मॉनिटरिंग है, वो हेल्थ केयर में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो आईओटी है जो ऐसे मॉनिटरिंग है वहां पे आईओटी यूज करता है। अब जो हमारा रिसर्च का एरिया है वो रिसर्च का है, इनकी इफेक्टिवनेस, एफिकेसी जो है वो इम्प्रूव करना है
कि भाई हम इनके बीच में जो डिवाइसेस हैं, कि लेट अस सपोज आपकी जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस और जो आपका हॉस्पिटल है, वहां एम्बुलेंस में देर आर सर्टेन सेंसर, सर्टेन कैमरा डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड, डिप्लॉयड, और कुछ है हॉस्पिटल में तो उनके जो बेटर कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उनके बीच में, और इन बिटवीन उनकी सिक्योर एंड प्राइवेसी होनी चाहिए कि भाई हाँ कोई बीच में से उसको टेम्पर ना कर सके, उनके बीच में जो डेटा शेयरिंग हो रही है तो उसको टेम्परिंग ना हो। तो वहां पे कुछ रिसर्च का एस्पेक्ट्स हो सकता है, या रोबोटिक सर्जरीज अगर जो रिमोट एरिया से कर रहे हैं तो उस वाली कंडीशन में भी इन चीजों को सिक्योरिटी और ट्रस्ट है उस चीज को हमको देखना पड़ेगा, या उनका जो कम्युनिकेशन है उनके बीच में एक बेटर अलाइनमेंट ऑफ द डिवाइसेज है, ऑटोमेटिक जो सर्जरी है या रोबोटिक सर्जरी है या इस तरह की जो चीजें हैं, तो उनके लिए भी हमें जो हेल्थ केयर का सेक्टर है वहाँ आईओटी का रोल है, और उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इस चीज पे हमें फोकस करना है थ्रू द हेल्प ऑफ रिसर्च। इसके बाद में जो जनरल सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, तब की कोई मशीन है उसमें फॉल्ट आने वाला है, और फॉल्ट को आने से पहले ही हम विद द हेल्प ऑफ अ सर्टेन सेंसर्स हमें पता चल जाए कि हाँ ये फॉल्ट है, और ये इसमें जो वियरिंग क्लियरिंग से रिलेटेड है तो वो हमें पहले ही पता चल जाए। या लेट अस सपोज हम जो भी कोई पर्टिकुलर पैटर्न डिजाइन कर रहे हैं और पैटर्न में कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो डिफेक्ट वहां पे एनालिसिस एनालाइज हम कर पाए बिफोर दैट, तो एक मैनी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें उस डिफेक्ट को रोक सकते हैं। तो ये, और दूसरा है कि जो भी वहां पे मैनुअल वर्क हो रहा है, मैनुअल वर्क में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो सेंसर्स हम इम्प्लांट कर दें और वो सेफ्टी जो यूजर्स हैं या उन यूजर्स की सेफ्टी को ध्यान में कंट्रोल करते हैं, मींस कैमरा, जैसे हमने कहा कि कैमरा हमने लगाया और उससे पहले कोई भी कुछ चीज हो रही है और होने से पहले हमें पता चल जाए। तो बाय दिस वे जो आपकी इंडस्ट्री में है, तमाम तरह की अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, सबके अलग अलग तरह के रोल हैं, अलग अलग तरह के सेफ्टी इश्यूज हैं, तो उन तमाम तरह के सेफ्टी इश्यूज को हम लोग वी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ आईओटी। तो दैट इज अगेन चैलेंज भी है और ये इसके फायदे भी हैं। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के लिए जैसा कि हमने कहा था कि डेटा कलेक्शन है स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंसर्स के थ्रू, या जो एग्रीकल्चर ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स के थ्रू हम आप डेटा, रियल टाइम डेटा जो फील्ड है उसका ले सकें, या लाइव स्टॉक ट्रैकिंग है, जियो फेसिंग फेंसिंग की है तो उसके लिए भी आप आईओटी का यूज कर सकते हैं, या स्मार्ट ग्रीन हाउसेज हैं तो ग्रीन हाउसेज के अंदर हम डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू उनका टेम्परेचर, उनका एनवायरनमेंट, प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है तो वो अकॉर्डिंगली टेम्परेचर हम एडजस्ट करते रहें, या उनको कब वाटरिंग की जरूरत है। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं ग्रीन हाउस में तो दैट कैन बी अ डोमेन एरिया। ये जो आईओटी का है डोमेन एरिया है कि भाई हम जो ग्रीन हाउसेज हैं उनको किस तरह से बेटरली और इफेक्टिवली हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर स्मार्ट फार्मिंग है, वहाँ पे आईओटी का यूज है, और इसको बेटर यूटिलाइजेशन और बेटर रिसोर्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये भी हम with the help of IoT we can make it possible. So these are the domains of IoT. अब based on this the whole discussion जो कि पिछले आप 3 दिन से शायद यही सब चीजों के बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे थे, अब इन्हीं डोमेन्स के बिहाफ पर हम रिसर्च के डायरेक्शंस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमने बात की वो बात की थी कि भाई हमारे वेरियस एरियाज हैं और वेरियस एरियाज के लिए वेरियस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी हैव डिप्लॉयड, वी नीड टू डिप्लॉय, और वी नीड टू डिप्लॉय वेरियस सेंसर्स एंड डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, तो उस वाली कंडीशन पे जब आपके डिफरेंट लोकेशंस में है तो वो सेंसर्स होंगे, सेंसर्स के साथ में कुछ बैटरीज या हम जो भी पावर उनको देंगे, तो पावर हार्वेस्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हम ऐसी डिवाइसेज हैं जो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सके इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हमें जो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं, तो उनके लिए हमें एनर्जी हार्वेस्टिंग एक मेजर इशू है कि हम इस तरह की डिवाइसेस बनाएं
वो डिवाइसेज हैं वो लो कॉस्ट भी होने के साथ साथ स्मॉल होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट डिवाइसेज होनी चाहिए, और कॉम्पैक्ट डिवाइसेज इसलिए होनी चाहिए जिससे कि एनर्जी का मिनिमल यूज हो सके। तो मिनिमल यूज के लिए जो डिवाइस डिजाइनिंग है या जो बैटरी डिजाइनिंग है या जो ऐसी डिवाइसेज हैं जो यूज ऑफ बैटरी है वो मिनिमल करें, तो ये सारा के सारा जो रिसर्च एरिया है वो एनर्जी हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। तो हमारे पास में हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास में अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, और हमारे ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरेजेज हैं वो क्या है, कितना हम कंजम्पशन इस डिवाइस में बैटरी का होने वाला है। तो बेस्ड ऑन द कंजम्पशन हमको किस तरह की डिवाइस हम लोग डिजाइन करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें हमने कहा कि स्मार्ट वॉच है, पहले 24 आवर्स के लिए थी, अब आजकल आपके पास में 15 डेज के लिए आपके बैटरी बैकअप के साथ में, एंड इन कमिंग टाइम might be possible for a year or for a months you need not to charge or you need not to replace the batteries। तो ये इस तरह की हमें पोर्टेबल डिवाइसेस डिजाइन करने के साथ साथ हमें जो एनर्जी हार्वेस्टिंग है, एनर्जी हार्वेस्टिंग पे हमें काम करना। तो एक जो रिसर्च का सबसे बड़ा इशू है या जो रिसर्च का एरिया है या डायरेक्शन ऑफ रिसर्च है वो है आपका एनर्जी हार्वेस्टिंग। एनर्जी हार्वेस्टिंग मैंने जैसा कहा कि इसका मेजर एरिया है वो तो यही है कि हमारा जो काम है कि अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, और उन अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज के हिसाब से हम उस एनर्जी को कैसे स्टोर करें, और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उन डिवाइसेस के साथ में, और उसका कंजम्पशन है वो हम कैसे मिनिमल कंजम्पशन हो इस चीज को है। तो ये हमारा एक बड़ा एरिया है जो कि रिसर्च का है। इसके अलावा हम जो हमारी बैटरीज हैं वो रिचार्जेबल बैटरीज हों। कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जिनमें कि आपके पास में बैटरी है वो यूज एंड थ्रो टाइप बैटरीज हम लोग यूज करते हैं। तो इन प्लेस ऑफ दैट हम ऐसा करें कि जो रिचार्जेबल डिवाइसेज हैं या रिचार्जेबल बैटरीज हैं वो उन डिवाइसेस के थ्रू होनी चाहिए। तो ये भी एक हमारा एक मेजर इशू है। तो हमारा जो एनर्जी हार्वेस्टिंग का जो पर्पज है वो है हाई एनर्जी एफिशिएंट और इकोनॉमिकल एंड मिनिचराइज द हार्डवेयर। हमारा जो हार्डवेयर है उसको कितना मिनिचराइज कर सकते हैं, कितना छोटा बना सकते हैं जिससे कि हमारा जो एनर्जी है वो मिनिमम यूज हो और मैक्सिमम हमें आउटपुट और मैक्सिमम टाइम के लिए वो यूजेबल हो। तो एक एरिया है जो कि है एनर्जी हार्वेस्टिंग का, ठीक है। अब एनर्जी हार्वेस्टिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं ये हमारे लिए सोचने की बात है। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ हम लोग 2 मिनट का डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से आगे फिर जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग केवल और केवल मैं टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा कि हाँ ये एरिया हो सकता है जहां आप रिसर्च कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, बट एनर्जी हार्वेस्टिंग अगर आप लोगों को चाहिए तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि एनर्जी हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है। एनर्जी हार्वेस्टिंग का मतलब है कि हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम ये चाहते हैं कि वो एनर्जी का मिनिमम कंजम्पशन हो और मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए वो आपकी जो डिवाइस है वो रन करे, और उसका किस तरह से हम स्टोरेज करें एनर्जी को। तो ये एनर्जी हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फाइन। आपको कुछ पूछना हो किसी को तो प्लीज रेज योर हैंड। नो क्वेश्चन। चलिए, जो आपका सेकंड है, सेकंड एरिया है वो है डेटा ड्रिवन आईओटी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा था कि आपके पास में जो आईओटी है, आईओटी में जो कैपेबिलिटीज हैं वो कैपेबिलिटीज ये हैं कि आप इसमें फिजिकल जो डिवाइसेज हैं या फिजिकल एंटिटीज हैं, फिजिकल एंटिटीज को और डिजिटल एंटिटीज को, फिजिकल एंटिटीज और डिजिटल एंटिटीज दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो या उन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हो या उन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। तो फिजिकल एंटिटीज है उनकी प्रॉपर्टीज एक डिफरेंट तरह की होती हैं, डिजिटल एंटिटीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं एक डिफरेंट तरह की होती हैं, और दोनों का जो डेटा, जो आपको डेटा मिलने वाला है वो भी आपका एक डिफरेंट तरह का है।
होने वाला है। अब इस वाली कंडीशन में अच्छा एक और बात ये भी है, अगर मान लीजिए कि अगर ये तो मैं कह रहा हूँ कि एक फिजिकल एंटिटी है और एक डिजिटल एंटिटी है, दोनों का नेचर अलग है, दोनों से टाइप जो डेटा मिलने हमें डेटा मिलने वाला है वो एक डिफरेंट काइंड का है, तो उनको मैनेज करना एक मुश्किल का काम है। लेकिन मान लीजिए हम केवल और केवल ये कहें कि हमारे पास में एक डिजिटल एंटिटी है, मतलब डिजिटल एंटिटीज हैं और डिजिटल एंटिटीज में डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेज हैं जिनके स्पीड या जिसकी हम वेलोसिटी है वो वेलोसिटी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक कैमरा है जिसकी रिफ्रेश रेट है वो कुछ और है, दूसरा कैमरा है उसकी रिफ्रेश रेट और डेटा कैप्चरिंग जो स्पीड है वो कुछ और है, या इमेज जो कैप्चरिंग है वो कुछ जो साइज और मेगापिक्सल्स है उसका डिफरेंट है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेरी कर रही है। उस वाली कंडीशन में हाउ दे कैन कम्युनिकेट, मतलब दोनों डिजिटली मतलब ये कह रहा हूँ कि डिजिटल एंटिटीज हैं, दोनों सेम काइंड ऑफ है बट उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है। दूसरी चीज है कि उनके बीच में ये कहूं कि जो सेंसर्स हैं जो कंटिन्यूअसली डेटा ये कहूं कि ट्रांसमिट कर रहे हैं या डेटा जनरेट कर रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर होने के कारण जो उनका डेटा है, डेटा सेट है वो भी डिफरेंट तरह का है। पहली प्रॉब्लम थी हमारी वेलोसिटी की कि उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है, डेटा जनरेशन है वो डिफरेंट स्पीड पे हो रहा है, या डेटा को जो कैप्चर कर रहे हैं वो डिफरेंट स्पीड से कर रहे हैं। तो अब उसको हम कैसे मैनेज करें या उसको हम कैसे एनालाइज करें, एक प्रॉब्लम। दूसरा है कि आपके पास ये है कि जो एबिलिटी ऑफ सेंसर्स हैं वो जितने भी सेंसर हैं वो कंटिन्यूअसली डेटा है वो जनरेट कर रहे हैं और दे आर स्केलेबल। बेसिकली मैं ये कहूँ कि जो स्केलेबिलिटी है उनके बीच में, तो उस वाली कंडीशन में हम उस डेटा को कैसे मैनेज करेंगे या उसको कैसे एनालाइज करेंगे ये दूसरी बात है। तो ये पहली चीज, पहली प्रॉब्लम हमारी आई वेलोसिटी से रिलेटेड, दूसरी चीज जो आई हमारी स्केलेबिलिटी से, और तीसरी चीज है कि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास में सेंसर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब डिफरेंट एनवायरनमेंट में डेटा है तो जो उनका डेटा सेट है वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ का होगा। तो हाउ, मतलब उनके जो डायनामिक्स हैं, ये कहूं कि डायनामिक्स आर डिफरेंट। तो अब डिफरेंट एनवायरनमेंट के डेटा को हमको कैसे स्टोर करना है, क्या मैकेनिज्म होगा, ये दिस इज अगेन अ बिग चैलेंज। या उनको उनके बीच उस डेटा सेट को जो डिफरेंट एनवायरनमेंट से डेटा कैप्चर किया है उसको अगर हमको एनालाइज करना है फॉर द पर्टिकुलर रिजल्ट फॉर अ पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग, देन हाउ वी एनालाइज। तो एक ये भी मेजर इशू है। फिर उसके बाद में ये कहूं कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं, एक जगह कैमरा से डेटा आपके पास आ रहा है, एक जगह सेंसर से डेटा आ रहा है, और उन दोनों को आपको मिक्सिंग करनी है, मतलब हीट्रोजेनिटी ऑफ डेटा है। हीट्रोजीनियस डेटा आपके पास में है, तो हीट्रोजीनियस डेटा को आपको कैसे यूज करना फॉर द एनालिसिस पर्पज। तो फॉर दैट पर्पज हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज अ सर्टेन डेटा माइनिंग टेक्निक्स। बट अगेन प्रॉब्लम तो हमारे पास है ही ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम लोगों को रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, और ये आपकी है डेटा ड्रिवन आईओटी, कि जैसा आपका डेटा आ रहा है और उस डेटा को इफेक्टिवली हम कैसे मॉनिटर करें और इमीडिएटली कैसे एनालिसिस करें विद द हेल्प विद द problem of velocity, with the problem of scalability, with the problem of dynamics, with the problem of heterogeneity। मतलब heterogeneous data है, dynamics वहां पे different environment से data आ रहा है, हमारे पास में ये कहिए कि आपकी जो scalable data है, उसके बावजूद भी हमारा जो IoT है, जो हमारी डिवाइसेस हैं, जो हमारा नेटवर्क है, वो इमीडिएटली डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा आने वाला, डिफरेंट एनवायरनमेंट से आने वाले डेटा को इफेक्टिवली कैप्चर करने के साथ एनालाइज करे। यही है हमारा डेटा ड्रिवन आईओटी रिसर्च एरिया। हमारा क्या कोशिश होगी, हम डिफरेंट एनवायरनमेंट से हम कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स डिजाइन करें, कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स के साथ में कुछ ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन करें कि हमारा स्केलेबल डेटा है, वो स्केलेबल डेटा को हम एक सेम ये कह दीजिए कि जो कंटिन्यूअस डेटा आ रहा है तो उसको हम एक पर्टिकुलर इंटरवल का डेटा के साथ में हमको एनालाइज करना है। तो जो एज पर द रिक्वायर्ड
डेटा या एक पर्टिकुलर टाइम का जो डेटा है वो हमें अवेलेबल हो जाए और वो सेंसर ऑटोमेटिकली खुद ही दे दे। हम सेंसर को कहें कि हमें ये वाला डेटा चाहिए और वही डेटा वो दे, वो कंटिन्यूअसली अपना डेटा रिकॉर्ड कर रहा करे। बट as and when we require a particular kind of data, then we have to instruct the sensor and sensor provide the particular data as per the need. तो ये हमारा एक सबसे बड़ा रिसर्च का इशू है, या ये हम कहें कि हिट्रोजीनियस डेटा है और हम सेंसर को या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये कहें कि भाई हमें ये वाला डेटा चाहिए और वो डेटा हमें इमीडिएटली अवेलेबल करवा दे वो पर्टिकुलर डिवाइस, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होगा। तो ये एक रिसर्च डायमेंशंस है और यही हमारा डेटा ड्रिवन आईओटी का एरिया है। इस पे पर्टिकुलर हमें जो डेटा ड्रिवन आईओटी है यहाँ पे हमको काम करना है। और बेसिकली ये जो इस तरह का डेटा है इसको हम नॉर्मली अलग एनवायरनमेंट, अलग स्पीड, अलग क्या कहें कि स्पीड के अलावा स्केलेबल डेटा अगर आ रहा है और उस डेटा को हम फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा लिंक्ड डेटा कहते हैं हम नॉर्मली। ये हमारा लिंक डेटा है और लिंक डेटा को नॉर्मली हम लोग जो मेथड है फॉर स्ट्रक्चरिंग करने के लिए या इंटरलिंकिंग करने के लिए सच डेटा के लिए इन अ यूजफुल वे, तो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लिंक डेटा। व्हाट इज दैट? दैट इज नॉन एज अ लिंक डेटा। लिंक डेटा आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा मेथड है, और ये मेथड, थ्रू दिस मेथड हम लोग जो हमारे पास में जो इस तरह का जो डेटा है, ये कह दीजिए कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है या आपका स्ट्रक्चर डेटा है या डिफरेंट एनवायरनमेंट का डेटा है, उसको आपको इंटर रिलेट करना है और इंटर रिलेट करने के बाद में उसको पब्लिश करना है। पब्लिश फॉर व्हाट? फॉर एनालिसिस पर्पज। तो दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म, दिस काइंड ऑफ मेथड इज नॉन एज अ लिंक्ड डेटा। तो अब इसके लिए हमारे पास में आईओटी के पास में कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं जिसको आईओटी कॉम्प्लेक्स इवेंट, या ये कह दीजिए कि कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट पे, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे कौन सा डेटा है और उस इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट के कॉन्सेप्ट में या पर्टिकुलर इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमको डेटा को एनालाइज करना है। तो ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज नॉन एज अ कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग टेक्निक, सीईपी टेक्निक्स। तो सीईपी टेक्निक पे भी हमें आगे अभी इसमें हमें काम करना है और इस पे हम फर्दर काम कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके रिसर्चर्स हैं वो इस पे फर्दर काम किया जा सकता है। मीन्स एक ये भी आपका डोमेन है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स इवेंट टेक्निक है या कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग है, सीईएफ, सॉरी कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग सीईपी है। तो इसके अंदर आपके पास में कुछ इंफॉर्मेशन कंप्लीटनेस के लिए है, या आप ये कहेंगे कि कुछ सिमेंटिक मैचिंग के लिए है। तो सिमेंटिक मैचिंग और कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग के लिए आप इंफॉर्मेशन कंप्लीटनेस है, इस पे भी फर्दर एक ओपन एरिया है जहां पे रिसर्च की जा सकती है। और इसके साथ में जो आप डेटा कैप्चर कर रहे हैं, तो डेटा की जो क्वालिटी है या डेटा की अनसर्टेनिटी है in the different environment, in the different situation, in with the help of a different सेंसर से जो डेटा आ रहा है, तो उस वाले में डेटा क्वालिटी पे भी काम करना या डेटा की अनसर्टिनिटी पे भी काम करना है। ये एक ओपन एरिया है जिस पे रिसर्च की जा सकती है कि हम लोग इस चीज को, अनसर्टिनिटी को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, या हम जो डेटा की क्वालिटी है वो उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अगेन ये आपका ओपन स्पेस या ओपन एरिया है। ठीक है। तो इसके अलावा डेटा का जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो आप डेटा माइनिंग में आप लोग नॉर्मली करते हैं, डेटा ट्रांसफरिंग है, डेटा सिंक्रोनाइजेशन है, डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा माइनिंग है। तो ये सारी चीजें इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जहां डिफरेंट स्पीड का, डिफरेंट एनवायरनमेंट से, डिफरेंट डिवाइसेस से डेटा आ रहा है, तो उसको आप किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आपका को स्पेस डिमांड टेक्निक्स है। तो यहाँ पे ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहाँ पे की रिसर्च की जा सकती है आईओटी के बारे में। तो ये सारा आपका डेटा ड्रिवन आईओटी है।
इसके बाद में सर्चिंग के लिए भी हम नॉर्मली IoT का यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास में सर्च इंजन है और सर्च इंजन के थ्रू हम क्या करते हैं कि कुछ टेक्सचुअल फ्रेज है, टेक्सचुअल फ्रेज को हम टाइप करते हैं और आपके सर्च इंजन है, सर्च इंजन आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके दे देता है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि ऐसा ये आपका कहें कि क्लाइंट सर्वर टेक्निक है और क्लाइंट सर्वर टेक्निक में सर्वर पे आपके पास एंटायर डेटा आपके पास है और आपने एक टेक्सचुअल फ्रेज है, आपने टाइप किया तो वो क्या करेगा, सर्वर से उस फ्रेज को सर्च करेगा और सर्च करने के बाद में एक पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू एक पर्टिकुलर फ्रेज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको सर्च करके दे देता है। दिस इज द मैकेनिज्म। अगर सेम कॉन्सेप्ट अगर हम ये कहें कि मल्टीपल डिवाइसेस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में, IoT बेसिकली क्या है, IoT में जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी सेंसर्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी मशीन्स हैं, दे आर डिप्लॉयड इन द डिफरेंट लोकेशन विथ डिफरेंट कैपेबिलिटीज और डिफरेंट नेचर। सबका अलग अलग नेचर है, अलग सेंसर है, अलग तरह का डेटा कैप्चर कर रहा है, अलग तरीके से एनालाइज कर रहा है, अलग तरीके से डेटा को स्टोर कर रहा है। तो उस वाली कंडीशन में जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो उन डिवाइसेस के बीच में अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिवाइस को सर्च करना है या पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा सर्च करना है, तो ये आपका IoT सर्च का एरिया होगा कि भाई हमें पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डेटा चाहिए और पर्टिकुलर डेटा है वो कौन सी सेंसर है वो जनरेट कर रहा है ना, और वो कहाँ से किस लोकेशन से आना है। तो ये जो सर्चिंग है, ये सर्चिंग हम लोग कंसीडर करेंगे IoT सर्च में। तो ये भी एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जो कि जहां पे की रिसर्च की जा सकती है। और बेसिकली जो आपकी वेब बेस्ड सर्चिंग है, जिसको वेब ऑफ थिंग्स भी आप कह सकते हो, कि वेब ऑफ थिंग्स में आपके कुछ भी वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब पे आप क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में सर्च कर रहे हो, तो सेम वे जो वेब ऑफ थिंग्स है WOT, तो वेब ऑफ थिंग्स वाला जो कॉन्सेप्ट है हम IoT में यूज करें और IoT में यूज करने के साथ ही हम वेब ऑफ थिंग्स सर्च इंजन WOTSE, वेब ऑफ थिंग्स सर्च इंजन हम लोग इस तरह का बनाएं या इस तरह का कॉन्सेप्ट हो कि जो आपके पास में डिफरेंट लोकेशन के डिफरेंट सेंसर, डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेज हैं, उनमें से वो डेटा को इन अ सिक्योर वे, इन अ कॉन्टेक्चुअल वे, कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कौन सा डेटा चाहिए, तो वो कॉन्टेक्चुअल वे में एक मतलब पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का डेटा है वो रिट्रीव करके आपको दे दे। तो इसके लिए आपको वेब ऑफ थिंग्स सर्च इंजन बनाना, उनके बाद में उनको जो, देखिए कोई भी सर्च है तो वहां पे सर्टेन इंडेक्सिंग होती है, तो उसके लिए इंडेक्सिंग टेक्निक बनाना, जैसा कि आपके पास में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो उसके लिए इसी तरह से यहाँ पे वेब ऑफ थिंग के लिए भी आपको ये जो वेब ऑफ थिंग्स सर्च इंजन है, इसके लिए भी आपको इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन से के लिए क्या एल्गोरिथम्स होंगी, तो एल्गोरिथम डिजाइनिंग है, उसके बारे में भी काम किया जा सकता है। फिर उसके साथ में रिलायबिलिटी, कि जो हमने सर्च किया है वो रिलायबल इंफॉर्मेशन है या रिलायबल सोर्स से हमारे पास में आ रही है। रिलायबल सोर्स का मतलब जो पर्टिकुलर डिवाइस इस तरह की इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रही है वो वही पर्टिकुलर सेंसर से आ रही है या नहीं आ रही है, ये उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। तो इस चीज के बारे में भी ये IoT सर्च का एरिया है या IoT सर्च का डोमेन है, जहां हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास में एरिया है, ये हमारे कुछ ये कह दीजिए कि अनएक्सप्लोर्ड थिंग्स हैं जहां पे कि हम रिसर्च कर सकते हैं। ये वेब ऑफ थिंग्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्वेरी प्रोसेसिंग के लिए, या इवन सर्च इंजन डेवलप करने का जो एरिया है, तो इसमें या एल्गोरिथम डेवलपमेंट की बात है वो हम लोग कर सकते हैं, या जो क्वेरीज हैं, क्वेरी डिपेंडेंसी के बारे में भी हम लोग काम कर सकते हैं। क्वेरी डिपेंडेंसी या उनकी जो रैंकिंग है, कि जब हम आप पेज रैंक जैसा करते हैं, हम सिंपल जो वेब ऑफ थिंग्स में सर्चिंग जब करते हैं, तो सर्चिंग में वहां पे कुछ रैंकिंग करते हैं कि हाँ दिस इज मोर रेलेवेंट
ये लेस रेलेवेंट, ये सबसे लेस रेलेवेंट। तो सबसे जो लेस रेलेवेंट होती है उसको हम लास्ट में डिस्प्ले करते हैं, जो सबसे मोर रेलेवेंट है वो आपके पहले पेज पे डिस्प्ले होती है। तो ये रैंकिंग एल्गोरिथम्स के बिहाफ पे होती है। तो सेम रैंकिंग एल्गोरिथम्स हैं वो हमें IoT एनवायरनमेंट के लिए भी डेवलप करनी है, डिजाइन करनी है। तो ये एरिया भी है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है कि हम कैसे रैंकिंग करें। जब वेब ऑफ थिंग सर्च इंजन बनना है तो उस वाली कंडीशन में आपको रैंकिंग कैसे करनी है, उनकी सर्विस इंडेक्सिंग कैसे करनी है, सर्विस इंडेक्सिंग की आप उनको कैसे रिट्रीव करना है, रैंकिंग स्कोर कैसे डिसाइड करेंगे, ये तमाम चीजें हैं। तो उनके बारे में आप लोग कर सकते हैं। या जो आपकी रैंकिंग एग्रीगेटर जो मॉड्यूल है, रैंकिंग एग्रीगेटर मॉड्यूल है, वो क्या होने वाला है और किस तरह से वो वर्क करेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, वो तमाम चीजें हम लोग IoT सर्च का जो एरिया है उसमें काम में लेने वाले हैं, या ये पर्टिकुलर एरिया है जहां हम इस पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये हर बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये एरिया अनएक्सप्लोर्ड है या इनमें हम काम कर सकते हैं। इसमें कुछ काम अभी अराउंड द ग्लोब काम चल रहा है। अगर आप कुछ रिसर्च पेपर्स अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का काम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग अभी कुछ चीजें हैं थोड़ी मैच्योर हैं, बट स्टिल दे आर इन मैच्योर सिचुएशंस कि अभी उनमें और भी काम किया जाना पॉसिबल है। कि रैंकिंग करना है तो रैंकिंग के लिए देयर आर सर्टेन एल्गोरिथम अवेलेबल, बट आप ये कहें कि दीज आर द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम तो वो गलत होगा। तो हमें कुछ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम फॉर रैंकिंग, फॉर क्वेरी प्रोसेसिंग, फॉर ऑल वी नीड टू स्टिल डेवलप। तो आप इन पे इस तरह का कोई भी रिसर्च हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू अ वेब ऑफ थिंग्स सर्च इंजन। तो ये IoT सर्च के बारे में बात हुई। इसके बाद में सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ट्रस्ट इन IoT। जैसा कि कहा हमने कि भाई सिक्योरिटी इज ए इम्पोर्टेंट कंसर्न कि जब आप IoT है, IoT में डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिवाइसेज हैं वो डिप्लॉयड हैं, वहां से वो डेटा आपके पास में गेटवे के थ्रू एनालाइजिंग जो भी यूनिट्स हैं उनके पास में आ रहा है। तो इन बिटवीन अगर कोई भी इंट्रूडर है या कोई भी हैकर है, उस हैकर ने आपकी इंफॉर्मेशन है वो हैक कर ली या उसने मैलिशियस इंटेंशन से कुछ और अलग इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दी, तो उस वाली कंडीशन में दैट विल क्रिएट रॉन्ग प्रेसिडेंस और रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमारे पास में आएगी। तो सिक्योरिटी कंसर्न है या प्राइवेसी कंसर्न है या ट्रस्ट कंसर्न है, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। वो तो अभी सिक्योरिटी वाला कंसर्न है जो हमारा करंट सिनेरियो है, वेब ऑफ टेक्नोलॉजी वाला है या वेब टेक्नोलॉजी वाला है। तो वहां पे भी सिक्योरिटी को लेके देयर आर सो मेनी इश्यूज। तो वो तो अगेन मैच्योर एरिया नहीं है। तो उस वाली कंडीशन में IoT बेस्ड जो सिक्योरिटी है वो तो अगेन इस पे बहुत कुछ काम किया जा सकता है। इंक्रिप्शन को लेके, जब आप डेटा कैप्चर कर रहा है, डेटा कैप्चर करने के साथ ही डिवाइस लेवल पे इंक्रिप्शन हो और इंक्रिप्शन होने के बाद में हम लोग ट्रांसमिट करें, और ट्रांसमिट करने के बाद में जब जहाँ एनालिसिस पॉइंट पे है, तो एनालिसिस पॉइंट पे जो आपकी डिवाइस थी उसने डेटा सेंडिंग के टाइप में कौन सी एल्गोरिथम यूज की, वो एल्गोरिथम को यूज कर डेटा को डिक्रिप्ट करे। तो ये मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है या इस पे काम किया जा सकता है। तो इंक्रिप्शन पे है या डिक्रिप्शन पे है कि डिवाइस इटसेल्फ डिसीजन ले कि कब मुझे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, कब मुझे कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें कि मुझे इंफॉर्मेशन को इन अ सिक्योर वे, इन इंक्रिप्शन मोड में मुझे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, या कौन सा डेटा है जिसको मैं यूं भी भेज सकता हूं, मतलब सिंपल वे में भेजना है, या ये इंफॉर्मेशन है वो मुझे केवल और केवल डिक्रिप्टेड मोड में भेजना है। तो ये दो चीजें हो गई। यहाँ पे डिवाइस का खुद को डिसीजन लेना है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग ऑफ द डिवाइस, एक एरिया ये है जिसपे की काम होना है या जिसपे रिसर्च की जा सकती है। या दूसरा क्या है कि सिक्योरिटी से कंसर्न है कि कब कौन सी डेटा को हमें सिक्योर वे में भेजना है और उनके लिए कौन से डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हैं, जो प्री डिफाइंड एल्गोरिथम्स हैं, हम लोग डिवाइस के साथ एम्बेड करें, और एम्बेडेड कोड है वो ये डिसाइड करे कि हमें कौन सी एल्गोरिथम कब किस डेटा के लिए यूज करनी है। तो मल्टीपल एल्गोरिथम्स के थ्रू हम डेटा को सेंड कर सकें फॉर विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो इस पे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी को लेके हुआ। और
इंटरऑपरेबिलिटी को लेके भी हम काम कर सकते हैं कि इंटरऑपरेबिलिटी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट में मल्टीपल काइंड ऑफ जो डेटा है उनको सिक्योरली हम कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर हमको क्लाउड सर्वर को यूज करना है या क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो उनको सिक्योर वे में हम कैसे एक्सेस करते हैं ओवर द IoT नेटवर्क और IoT फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उन पे रिसर्च किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है ट्रस्ट बेस्ड सिक्योरिटी, कि कोई भी डिवाइस है वो दूसरी डिवाइस के साथ में कम्युनिकेट कब करे। अगर उन दोनों के बीच में ट्रस्ट फैक्टर है, ट्रस्ट वर्दीनेस है, देन दे कैन कम्युनिकेट, अदरवाइज डिवाइस विल नॉट कम्युनिकेट। देखिए नॉर्मली अगर आपने कहा कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करें और आपने एक सर्टेन प्रोटोकॉल दिया तो दे विल ऑलवेज कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब उनको थोड़ी पता है कि भाई बीच में इंट्रूडर है या बीच में हैकर है, उसने इंफॉर्मेशन हैक किया, वो मैलिशियस इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। तो इसके लिए जो ट्रस्ट प्रोटोकॉल्स हैं या ट्रस्ट सिक्योरिटी ट्रस्ट है या ट्रस्ट बेस्ड सिक्योरिटी है, जब तक उनमें नहीं होगा या इससे रिलेटेड कोई भी हम प्रोटोकॉल डिजाइन नहीं करेंगे तब तक हमारी डेटा सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज होंगे। और वी कैन नॉट रिलाई ऑन द डेटा विच इज जनरेटेड, विच इज सप्लाइड बाय द डिवाइस। जो डिवाइस आपको डेटा सप्लाई कर रही है, फील्ड डेटा सप्लाई कर रही है, तो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो ट्रस्ट प्रोटोकॉल्स है या ट्रस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ट्रस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म डेवलप किया जाना है। तो ये भी एक रिसर्च का अनएक्सप्लोर्ड एरिया है कि हमारे ट्रस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, ट्रस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या होना चाहिए, डिवाइस कब ट्रस्ट करके डेटा ट्रांसमिट करे या कब उसको डेटा को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। तो ये जो मैकेनिज्म है या ये जो मॉडलिंग है या जो रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स हैं, ये हम लोग ट्रस्ट मैनेजमेंट के बेसिस पे करेंगे। तो ये ट्रस्ट मैनेजमेंट हमको डेवलप करना, ट्रस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हमें डेवलप करनी है। हमें का मतलब रिसर्चर्स को या डेवलपर्स को डेवलप करना है, या कंप्यूटिंग ट्रस्ट है उससे रिलेटेड क्या प्रोटोकॉल्स होंगे वो डेवलप करने किए जा सकते हैं, या इवेंट ड्रिवन, टाइम ड्रिवन या हाइब्रिड अप्रोच है वो क्या हो सकती है कि टाइम ड्रिवन जो है अप्रोच है वो क्या होगी, या एप्रोप्रिएट ट्रस्ट वर्दीनेस डिवाइसेस कौन सी होंगी, उन डिवाइसेस को कब मानेंगे कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी डिवाइस है और ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या ये डेटा जो है डेटा ट्रस्ट वर्दी है, ये डेटा ट्रस्ट वर्दी नहीं है ट्रांसमिटेड बाय द डिवाइस, ये कब होगा। तो ये भी एक मेजर इशू है फॉर द रिसर्च। तो ऑल दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ट्रस्ट इन IoT। इसके बाद में सर्विस कंप्यूटिंग एंड IoT के बारे में है। तो सर्विस कंप्यूटिंग में आप ये कह सकते हैं कि जैसे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, और आजकल आपके पास में क्लाउड के बारे में बात करेंगे तो क्लाउड में एवरीथिंग अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ अ सर्विस, चाहे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करें, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करें, या हार्डवेयर एज ए सर्विस की बात करें, तो यहाँ पे एवरीथिंग अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो अब उनका जो सर्विस कंप्यूटिंग है, मतलब वो पर्टिकुलर सर्विस है, हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी है या वो सर्विस है, वो सर्विस के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि पर्टिकुलर डिवाइस जो आप एक्सेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी इज वन कंसर्न, ओके, बट आफ्टर दैट व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स फॉर द सर्विस, कि वो आपको सर्विस किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिलनी है और उन टर्म्स एंड कंडीशन पे पर्टिकुलर सर्विस को कैसे एक्सेसिबल कर सकते हैं इन द वेरियस डोमेन्स ऑन द वेरियस डिवाइसेस। तो दिस इज अ मेजर कंसर्न इन द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो ये भी आपके जो सर्विस कंप्यूटिंग है, दिस इज अनएक्सप्लोर एरिया कि IoT सर्विसेज हैं, IoT सर्विस डिस्कवरी के बारे में बात करने हैं, या हम जो सिमेंटिक एनोटेशन है उसके बारे में हमको बात करनी है, या ओपन IoT क्या हो सकती है, ओपन IoT कैसे हेल्पफुल हो सकती है सर्विस डिस्कवरी में या सर्विस प्रोविजंस में। तो इसके लिए भी जो हम सर्विस डिस्कवरी, सर्विस डिलीवरी, उनके प्रोटोकॉल्स, ओपन IoT, ये एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहां पे भी आप काम कर सकते हैं फॉर द रिसर्च पर्पज। और इसके लिए जो टेक्निक नॉर्मली अभी जो यूज कर रहे हैं वो है लिंक एनालिसिस, कि कौन सी विद द हेल्प ऑफ अ लिंक एनालिसिस हम लोग ये देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं और उन इंपॉर्टेंट सर्विसेज को आप कब
कैसे एक्सेस कर सकते हैं? देयर आर सो मेनी सर्विसेज अवेलेबल, आउट ऑफ देम व्हिच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना, और फॉर पर्टिकुलर डिवाइसेज। तो ये कैटेगराइजेशन है। तो फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ अ सर्विसेज, लिंक एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट है, इसके भी फर्दर आप काम कर सकते हैं कि पर्टिकुलर डिवाइस पे, पर्टिकुलर मूवमेंट पे कौन सी सर्विस और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे होगी, और उसके क्या प्रोटोकॉल, एसोसिएटेड प्रोटोकॉल्स हैं, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये आपका इफेक्टिव और एफिशिएंट आईओटी सर्विस डिस्कवरी, इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें सर्विस डिस्कवरी करनी है विद द अवेलेबल पूल ऑफ द सर्विसेज, जो भी हमारे पास में जो पूल है सर्विसेज का, वो किसी से रिलेटेड भी हो सकती है, सर्विस रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर हो, सर्विस रिलेटेड टू हार्डवेयर हो, सर्विस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और व्हाटएवर। तो जो अवेलेबल पूल में से है, तो हमको जो सर्विस चाहिए, जो सर्विस डिस्कवरी चाहिए फॉर द आईओटी, तो और वो इन एफिशिएंट और इफेक्टिव वे, तो ये हमारा एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है कि हाउ वी फाइंड आउट द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आईओटी सर्विसेज फ्रॉम द पूल, और उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे। तो ये भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहां पे भी अभी रिसर्च होनी है, रिसर्च की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आती है रिकमेंडेशन सिस्टम्स, आईओटी रिकमेंडेशंस। जैसे कि अगर आपने एक चीज को, आप गूगल पे जैसे होते हैं, और गूगल पे आपने एक पर्टिकुलर चीज को 2-3 बार सर्च करते हैं, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी प्रेडिक्ट करना शुरू कर देता है कि भाई अब आप इस तरह की चीजें, जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन होंगे, तो वो पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपके पास में डिस्प्ले होती है, या आपके पास में उस तरह के पॉपअप्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली आपने जब भी 2 या 3 बार आपने जो भी चीजें सर्च की, या पर्टिकुलर टेक्स्ट आपने सर्च किया, उसको वो अपना एक स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद बेस्ड ऑन द स्टोर्ड टेक्स्ट या बेस्ड ऑन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, वो आपको प्रिडिक्ट करता है, और प्रिडिक्ट करके रिकमेंड करता है कि ये आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर आप जैसे कि मोबाइल फोन सर्च किया, तो मोबाइल खाते में वो रिकमेंडेशन करेगा कि इन द पर्टिकुलर पैरामीटर्स दीज काइंड ऑफ फोन्स आर अवेलेबल। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन होंगे, तो वो आपको उस तरह की रिकमेंडेशंस देना शुरू कर देता है। तो दिस इज द इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ योर सर्च इंजन। ये आपका जो भी आपका सर्च इंजन है, ये उसका एक इंटेलिजेंट बिहेवियर है। वो आपके कॉन्टेक्स्ट को सेव कर रहा है। जो पहले वाली जो सर्च हिस्ट्री है, उस सर्च हिस्ट्री के बेस पे, वो उस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आपको कुछ रिकमेंड कर रहा है। द सेम वे आईओटी में भी आपको रिकमेंडेशन सिस्टम है, वो अभी डेवलप होना है कि भाई हमने 2 या 3 बार किसी पर्टिकुलर डिवाइस से हमने डेटा लिया फॉर द एनालिसिस पर्पज, और वो डेटा किस तरह का डेटा था, तो वो हमने पैरामीटर्स दिया कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए और किस किस डिवाइसेस से वो अवेलेबल हो सकता है। तो जो आपकी आईओटी सर्च है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, वो क्या करेगा, आपको रिकमेंड करेगा कि हाँ ये डेटा पर्टिकुलर डिवाइस पे अवेलेबल है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको ये फैसिलिटी करे कि हाँ इस पर्टिकुलर डिवाइस पे ये पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल है, तो यू कैन कैप्चर डेटा फ्रॉम दैट डिवाइस फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये आपका रिकमेंडेशन है। तो ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, अगेन दिस इज अ अनएक्सप्लोर्ड एरिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईओटी, जहां पे मल्टीपल हार्डवेयर, मल्टीपल डिवाइसेस और मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे आर शेयरिंग डेटा विद ईच अदर। तो वहां पे जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, वो हमको या रिकमेंडेशन प्रोटोकॉल्स हैं, उनके ऊपर जो रिसर्च है वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। इसके बाद में एज कंप्यूटिंग एंड आईओटी है। तो एज का मतलब है कि जो कौन सी नियरेस्ट, जैसा कि हमने कहा कि कुछ फिजिकल और कुछ डिजिटल डिवाइसेस हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड। तो हम ये देखते हैं कि नियरेस्ट नोड कौन सा है जिससे हमको इमीडिएटली डेटा है हम एक्सेस कर सकें। तो जो स्टोरेज है, स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन है, स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी नोड पे अवेलेबल है, फ्री है फॉर द स्टोरेज पर्पज, नियरेस्ट नोड कौन सा है जिससे कि हम इफेक्टिवली और टाइमली वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें।
तो जो एज है वो एज आपको ये प्रोवाइड करता है कि आपके नियरेस्ट नोड कौन कौन से हैं, उन नियरेस्ट नोड में से कौन कौन से नोड हैं वो फ्री हैं, या उन नोड से आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या उन इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये एज कंप्यूटिंग हमें दे सकता है, और इस पे भी दिस इज अगेन अनएक्सप्लोर्ड एरिया जहां कि हम लोग काम कर सकते हैं कि भाई विद द हेल्प ऑफ एज कॉन्सेप्ट how we find out the nearest neighboring devices, and out of them where we capture the reliable data for the analysis purpose, or we store the data in a reliable way for the future purpose of analysis. तो ये आपका एज कंप्यूटिंग जो कि आईओटी से रिलेटेड है, ये भी आपका भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहां पे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। वो नियरेस्ट नेबर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बाद में डेटा को स्टोरेज करने के लिए, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा माइनिंग के लिए। तो ये नियरेस्ट का जो ऑप्टिमाइज होगा, बेटर परफॉर्मेंस उसकी कैसे हो सकती है, या कौन सी डिवाइस है वो बेटर हो सकती है अमंग द कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस। तो ये सारी चीजें एज का पार्ट है। इसके बाद में हम जो कहते हैं कि सोशल आईओटी भी जस्ट लाइक ए सोशल नेटवर्क, अभी जो जैसा कि हमारे पास में सोशल नेटवर्क है जहां पे मल्टीपल पीपल या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दे आर कम्युनिकेटिंग, दे आर शेयरिंग देयर व्यूज, एक दूसरे के साथ अपने व्यूज शेयर करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। द सेम वे अगर हमारा जो हार्डवेयर नेटवर्क है या हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, इफ दे स्टार्ट कम्युनिकेशन विद ईच अदर, देन कितना अच्छा होगा कि भाई कौन सी डिवाइस को कौन सा डेटा चाहिए, वो डिवाइस या विदाउट किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन के विदाउट। अभी क्या हो रहा है कि जो डेटा किसी डिवाइस को चाहिए तो ह्यूमन इंटरवेंशन से आपको वो डेटा उस पर्टिकुलर डिवाइस को प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बाद एनालिसिस एंड जो भी आपको करना है वो with the help of with the intervention of human being that is there. But just think about that, अगर मान लीजिए कि आपका जो जैसे सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क में आप अपनी मर्जी से डेटा शेयर कर रहे हैं और उसमें जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जिसको जहां से चाहिए वो मिल जाती है, वो इसको यूज करता है, और जो आपका नेटवर्क है डे बाय डे वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो किसी ने ट्वीट किया, ट्वीट के कॉरेस्पॉन्डिंग किसी ने दूसरा ट्वीट किया, और दे कम्युनिकेटिंग ईच अदर बाय दिस वे, दे आर शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन और देयर व्यूज विद ईच अदर। अगर मान लीजिए हम एक ऐसा ही ट्विटर प्लेटफॉर्म बना दें जिसमें कि एक सेंसर क्लाइमेट सेंसर है दूसरे क्लाइमेट सेंसर से जो कि डिफरेंट लोकेशन पे है, डिप्लॉयड है, तो डिफरेंट लोकेशन के जो सेंसर्स हैं दे कैन कम्युनिकेट और इवन दे कैन ट्वीट देयर डेटा। जो क्लाइमेट वाला जो डेटा है या एनवायरमेंटल डेटा है वो दोनों एक दूसरे को साथ शेयर कर सके विद द हेल्प ऑफ अ ट्वीट। तो कितना अच्छा होगा कि फिर हमें एक ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होगी। फॉर दैट पर्पज हमें कुछ प्रोग्राम्स डिजाइन करने पड़ेंगे, जैसे कि ट्वीट करता है, ह्यूमन इंटरवेंशन है क्या, खुद अपना ट्वीट कर रहा है। अब वहां पे क्या है, जो एक सेंसर पर्टिकुलर मूवमेंट का डेटा है वो स्टोर कर रहा है, और उसको क्या होगा, एक प्रोग्राम या एक कोड हम लिखें और वो पर्टिकुलर मूवमेंट जब किसी दूसरे को चाहिए तो वो इन टर्म्स ऑफ अ ट्वीट वो आपको वो डेटा अवेलेबल करवा दे। विद द हेल्प ऑफ सम इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स एक डिवाइस दूसरे को पर्टिकुलर ट्वीट के फॉर्म में या पर्टिकुलर कोड के फॉर्म में वो डेटा ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दे। तो ये क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन ऑफ द डिवाइस हो गया। और कम्युनिकेशन ऑफ द डिवाइस का मतलब इस तरह से जैसे जैसे आपके दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, इस तरह से मान लीजिए मिलियंस और बिलियन डिवाइसेस हैं एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ट्वीट एंड रीट्वीट फॉर्म में। तो दिस इज सोशल आईओटी। ये आपकी डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस का खुद का अपना एक सोशल नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क का मतलब है कि पर्टिकुलर डोमेन में वो डेटा शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो डिफरेंट डोमेन के डेटा है उसको शेयर कर रहे हैं। इन अ पर्टिकुलर डोमेन दे आर शेयरिंग द डेटा एंड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा दे आर शेयरिंग इन टर्म्स ऑफ अ ट्वीट और रीट्वीट। तो ये जो चीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैटेरियलाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च,
कि हम किस तरह से ट्वीट फॉर्मेट क्या हो, उसका जो ट्वीट है उसकी या उसमें कौन सा डेटा हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलर क्या प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, रूल्स क्या हो सकते हैं, क्या एनालॉगी हो सकती है, हाउ ऑब्जेक्ट्स, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो डिवाइसेज हैं वो कैसे अपने ब्लॉग लिखें। ब्लॉग का मतलब है काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले फॉर अदर्स। तो वो उनके पास जो डेटा है, जो वो डेटा डे बाय डे कैप्चर कर रही हैं, उस कैप्चर्ड डेटा को खुद एनालाइज करके वो ये कहें दूसरे को कि भाई ये डेटा था और इस तरह का डेटा इस तरह से एनालाइज किया जा सकता है, ये मैकेनिज्म हो सकता है। तो इसके पीछे कोई एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम या एक इंटेलिजेंट कोड या एक एजेंट हमको लगाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अ बोट, और वो बोट है, इंटेलिजेंट बॉट है, वो एनालाइज करेगा डेटा को और वो एक क्या करेगा, ब्लॉग लिखेगा। ब्लॉग का मतलब एक इंफॉर्मेशन बना के रखेगा, एंड व्हेन एनीबॉडी इज रिक्वायर्ड, तो वो ब्लॉग उसको सप्लाई, मतलब इन टर्म्स ऑफ अ ब्लॉग दैट इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू अनदर डिवाइसेस, and by this way the devices communicating with each other, sharing information with either other. So this is the concept. तो ये भी, इस पे भी अलग अलग तरह का है। अब आपके पास में कितने तरह के सोशल नेटवर्क हैं, कितने तरह की ऑन्टोलॉजी वहां पे काम कर रही है फॉर शेयरिंग फैचिंग इंफॉर्मेशन, और वो किस तरह से कर रहे हैं, और इस नेटवर्क ऑन्टोलॉजी क्या होगी, इस पे भी हम या जो रिसर्चर्स हैं वो काम कर सकते हैं। उनके बीच में जो डिवाइसेज हैं उनके बीच में किस तरह की एप्लीकेशंस होंगी, और उन एप्लीकेशंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, मल्टीपल डिवाइसेज नेटवर्क में मल्टीपल टाइम्स के साथ एक्सेस कर रही हैं, तो वो किस तरह की रिलेशनशिप या कौन सी ऑन्टोलॉजी है या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या मैकेनिज्म होगा। So again, this is all about a social IoT, or social IoT is again an unexplored area of research where you can work or anybody can work for the research purpose. इसके बाद एक और जो एरिया था जिसको कि हमने कहा था कन्वर्सेशनल IoT। तो कन्वर्सेशनल IoT जो है आपका, कि वही डिवाइसेज हैं वो एक दूसरे के साथ में इन टर्म्स ऑफ ए टेक्सुअल पार्ट और सम नेचुरल लैंग्वेज यूनिट के रूप में how they can communicate with each other. तो this is again a research direction कि भाई हमारे जो है कि जो भी टैग्स हैं या जो डिवाइसेज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या सेंसर्स हैं, तो वो सेंसर्स एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन के लिए टेक्सुअल इंफॉर्मेशन को, उन टेक्सुअल इंफॉर्मेशन का क्या फॉर्मेट होगा, क्या टेम्पलेट होगा, वो टेम्पलेट एक दूसरे को कैसे अंडरस्टूड करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये, या हम ये कहें कि नेचुरल लैंग्वेज के साथ में है, वो कैसे करेंगे। तो ये कन्वर्सेशनल IoT का हिस्सा है। तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करेंगे या AI की बात, कन्वर्सेशनल AI की बात करेंगे। तो दिस इज अगेन अनएक्सप्लोर्ड एरिया वेयर एनीबडी कैन वर्क टू एक्सप्लोर द एरिया। इसके बाद में समराइजेशन की बात करते हैं। तो समराइजेशन का मतलब है कि जैसे आपने टेक्सुअल समराइजेशन की बात करते हैं कि आपकी एक बुक है, बुक की समरी लिखनी है, तो देयर आर सो मेनी बोर्ड्स आर देयर, सो मेनी इंटेलिजेंट एजेंट्स आर देयर, सो मेनी इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स आर देयर ओवर द गूगल और वेब। तो आप जैसे ही उसको टेक्स्ट को देंगे, वो समराइज करके बेस्ड ऑन द की टेक्स्ट जो भी है, की एलिमेंट्स है, की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स के बिहाफ पे उसको टेक्स्ट को समराइज करके दे देगा। सिमिलरली अगर आपके पास में जो IoT है, IoT डेटा आपके पास में कंटिन्यूअस डेटा कैप्चर कर रहा है, और कंटिन्यूअस डेटा कैप्चर करने के बाद में हम ये चाहते हैं कि हमें केवल और केवल बेस्ड ऑन सम की पॉइंट्स वही डेटा हमें मिले, बाकी का डेटा हमें नहीं चाहिए। तो अब उसके लिए भी हमें कुछ एल्गोरिथम डिजाइन करनी पड़ेंगी या कुछ एलिमेंट्स, इस तरह के ऑपरेशंस डिजाइन करने पड़ेंगे जिसके बिहाफ पर वो आइडेंटिफाई कर सके कि बेस्ड ऑन द की एलिमेंट्स और या की ऑपरेशंस वही आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट, तो वो डेटा केवल सप्लाई कर दे, बाकी डेटा को वो डिवाइस है वो नेटवर्क पे कम्युनिकेट ना करे। तो ये समराइजेशन है। एज एन एग्जांपल आप इसको ये ले सकते हो कि मान लीजिए हमारे जो सर्वेलेंस है, ट्रैफिक सर्वेलेंस की बात करूं, या स्मार्ट सिटीज में आपने सर्वेलेंस के लिए कैमरा लगा रखा है। एक किसी भी पॉइंट का, किसी भी चौराहे का कैमरा है, वो कंटिन्यूअसली आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अब कितना टीबी डेटा डेली वो कैप्चर कर रहा है। अब केवल और केवल हम इवेंट ट्रिगर डेटा कि एक पर्टिकुलर इवेंट पे क्या डेटा था, तो वो हम की पॉइंट्स अगर उसको दे दें, और की पॉइंट्स के बिहाफ पर केवल इवेंट
ड्रीवन डेटा है कि कोई भी इवेंट ट्रिगर हुई या कोई मान लीजिए कोई इवेंट का मतलब कोई ये कह दीजिए क्राइम हुआ या कोई वहां पे ट्रैफिक का कोलिजन हुआ, तो वो पर्टिकुलर इवेंट है उसी को कैप्चर करे, मतलब जो कैप्चर डेटा में से उस पर्टिकुलर मूवमेंट को वो क्या करे, ले और फिर उसको सप्लाई करे। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली आपका डेटा का समराइजेशन है कि आपके पास में 24 आवर्स का वीडियो था और उस वीडियो में से एक पर्टिकुलर इवेंट जो अकर हुई, तो इवेंट ड्रिवन डेटा मतलब बेस्ड ऑन द की एस्पेक्ट्स आपने दिया कि भाई हाँ इस तरह का कॉलिजन का है, तो कॉलिजन डेटा चाहिए या कोई क्राइम या कोई इस तरह की चीज है, तो वो पर्टिकुलर की पॉइंट्स आपने दिए और उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइस अकॉर्डिंगली वो डेटा दे। तो ये आपका क्या हुआ, डेटा का समराइजेशन हुआ। समराइजेशन का मतलब 24 आवर्स का जो वीडियो था उस वीडियो में से केवल उसने समराइज करके एक पर्टिकुलर इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा उसने प्रोवाइड किया। तो ये इस तरह के भी हो सकते हैं। तो टेक्सुअल समराइजेशन है जो डेटा आपका स्टोर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ अ टेक्स्ट, या आपका मैथमेटिकल डेटा स्टोर कर रहा है कि पर्टिकुलर मोमेंट का एक टेम्परेचर है या वो है, तो एक इवेंट ट्रिगर के टाइम का वो डेटा अगर चाहिए तो वो आप डेटा समराइज करके डिवाइस आपको एनालिसिस पर्पज के लिए दे, तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस, समराइजेशन के लिए क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, ये भी एक एरिया है जो कि अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जिसपे कोई भी रिसर्चर है वो काम कर सकता है। तो ये कुछ एक एरिया है जिनको कि हम लोग ये डायरेक्शंस हैं, या ये कह सकता हूं कि कुछ ऐसा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहां पे आप रिसर्च कर सकते हैं, या ये वो फर्स्ट एरिया है जहां पे रिसर्च अभी अनएक्सप्लोर्ड है और वो की जानी है। और वो जो भी डायमेंशंस है आईओटी जहां जहां यूज होता है, आईओटी जिन जिन एरिया में यूज होता है, जिन जिन डोमेन में यूज होता है, वहां पे उनके कॉरस्पॉन्डिंग दीज आर द फर्स्ट एरिया जहां पे भी कि आईओटी को यूज किया जा सकता है। तो ये दीज आर द रिसर्च डायरेक्शंस। अब जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, जो इन चीजों को लेते हुए मैं अगर स्मार्ट सिटीज की बात करूं, तो स्मार्ट सिटीज में मैंने आपके पास में कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि स्मार्ट सिटीज में इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेके हम करें। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन फॉर स्मार्ट विलेजेस, कि हम हमारे जो स्मार्ट विलेजेस में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं या उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका जो स्टडी, जो रिसर्चर है वो आईओटी एप्लीकेशंस को है, उनका इम्पैक्ट को लेके है, टूडेज लाइफ को कैसे इफेक्टिव कर रहे हैं, है ना, गांव की लाइफ को कैसे इफेक्ट कर सकती हैं, कौन से ऐसी डिवाइसेज हैं या कौन सी आईओटी टेक्नोलॉजी हैं जो उनको एप्लीकेशंस हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, उनका कैसे इंटीग्रेशन करें उन एप्लीकेशंस का, जिससे कि जो हमारे विलेजर्स हैं या एक जो रूरल लाइफ है, वो रूरल लाइफ है वो कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो रूरल लाइफ को हम स्मार्ट एंड कंफर्टेबल बनाने के लिए आईओटी डिवाइसेस को कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करें, कैसे वो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो। तो ये आपका एक एग्जांपल हो सकता है, वो है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन एंड स्मार्ट विलेजेस, या स्मार्ट सिटीज को भी इसी तरह से आप कंसीडर कर सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल हो सकता है जिसको कि कहते हैं कि आईओटी अनेबल्ड होम अप्लायंसेज मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, कि आपके घर का स्मार्ट सिटीज की बात करें या स्मार्ट विलेजेस की बात करें, तो वहां पे जो आपकी घर की जितनी भी डिवाइसेज हैं वो डिवाइसेज एक दूसरे के साथ में किस तरह से कम्युनिकेट करें। तो आईओटी की एप्लीकेशंस को आप किस तरह से यूज करें जिससे कि आपकी घर की तमाम डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करें, यूज करें, और इफेक्टिवली स्मार्ट होम्स और जो घर के लोग हैं उनकी लाइफ, ईज ऑफ लाइफ हो। तो ये उसके लिए सेकंड एग्जांपल है। इसके बाद में जो तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं स्मार्ट सिटीज को लेके, जो कि एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है, ऑप्टिमाइजिंग आईओटी अनेबल्ड सर्विसेज इन द स्मार्ट सिटीज, कि जो भी आपकी सर्विसेज हैं, आईओटी की सर्विसेज हैं, वो स्मार्ट सिटीज में चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो सकती हैं या सर्विसेज को लेके हो सकती हैं, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को लेके हो सकती हैं, तो उनका एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन, एक दूसरे के साथ में बेटरली यूज कैसे कर सकते हैं, इन स्मार्ट वे कैसे यूज कर सकते हैं, या आपका जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो अर्बन सर्विसेज हैं,
चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से हो, सीवरेज से रिलेटेड हो, तो उनके बीच का कम्युनिकेशन है जिससे लाइफ एंड कल्चर को बेटर बनाया जा सके। तो ये आईओटी को यूज करते हुए स्मार्ट सिटीज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कुछ रिसर्च कर सकते हैं। ये बिजनेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें कि हमने ये कोशिश की है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं बिजनेस मॉडल्स को, कि अलग अलग 2 बिजनेस मॉडल्स हैं, उन बिजनेस मॉडल्स को हम आईओटी की हेल्प से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक ये भी एरिया हो सकता है। तो इसमें आर्किटेक्चर मॉडलिंग को लेके हो सकता है, ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ले सकता है, एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी को लेकर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। दूसरा एग्जांपल जब हम बात करते हैं बिजनेस के लिए, तो हम ये कह सकते हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोसेस पैरामीटर्स थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, की आईओटी का यूज करते हुए जो ऑटोमेशन सिस्टम है इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोसेस का, कि अगर बाल बियरिंग की फैक्ट्री है और उसमें बाल बियरिंग बनाने का जो है ऑटोमेशन करना है, स्पेसिफिक है बेसिकली, या हम पावर लूम है, पावर लूम को हम स्पेसिफिकली ऑटोमेशन करना चाहते हैं, तो आईओटी की यूज करते हुए हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम जो इंडस्ट्री की जो फंक्शनिंग है, प्रोडक्टिविटी है, उसको किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, या एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बेटरली यूज कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर्स के बिहाफ पर हम ये आईओटी का यूज करते हुए इस पे रिसर्च की जा सकती है। तो ये कुछ इस रिसर्च एरिया है। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने लिया है वो लिया है ऑप्टिमाइजिंग रियल टाइम इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेटा यूजिंग बिग डेटा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, कि बिग डेटा को यूज करते हुए आपका जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उनको कैसे आईटी इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं, या एप्लीकेशंस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप एनर्जी सेविंग और हाई वेलोसिटी और रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो एनर्जी इश्यूज को लेके हो सकता है, रेस्पॉन्स टाइम को लेके हो सकता है, थ्रूपुट को लेके हो सकता है। तो इन एरियाज को थ्रूपुट, एनर्जी, वेलोसिटी और इनको लेते हुए आप उन पे रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बिजनेस एरियाज का है। इसी तरह से टेम्परेचर सेंसर्स के लिए भी है। ये एक एग्जांपल है जो लिया है डेवलपमेंट ऑफ आईओटी एंड जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज, की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको मैनेज करने के लिए हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि हम आईओटी रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे सिक्योरिटी जो थ्रेड्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेड्स के लिए भी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एंड मुझे लगता है कि इतना डिस्कशन के बाद में आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीजें जो एरिया हैं, एग्जांपल्स हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो ये मैं आपके जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं उनको साथ अभी शेयर कर दूंगा। तो यू जस्ट गो थ्रू इट एंड जस्ट, अब मैं आपको क्वेश्चंस के लिए ओपन करता हूँ, यू मे आस्क, है ना। अब इसी तरह के बहुत सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैंने लिया है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है तो आप किस तरह के रिसर्च कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा जो एरिया जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में आप कैसे कर सकते हैं, ब्लॉकचेन में आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने 1-2 एग्जांपल दिए उसी तरह से ब्लॉकचेन में आप क्या रिसर्च कर सकते हैं। और उसके बाद में जो और क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं कि हेल्थ केयर के लिए क्या बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या हो सकता है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड आईओटी भी एक रिसर्च का एस्पेक्ट हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईओटी वहां पे भी हो सकता है, स्मार्ट फार्मिंग में आईओटी का हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, स्मार्ट कैंपसेज उसमें आप आईओटी को यूज कर सकते हैं। तो ये दीज आर द, अब जो भी आपके पास जितनी भी आगे की स्लाइड्स हैं, दीज आर द डिफरेंट डोमेन्स जहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आप एज ए रिसर्च यूज कर सकते हैं। तो ये आपके आगे की स्लाइड्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सिंपल चीजें हैं जहां की आईओटी को अप्लाई करेंगे फॉर द रिसर्च, कि जो 5G नेटवर्क्स हैं उनमें आईओटी को कैसा रोल हो सकता है, आईओटी को लेके क्या कर सकते हैं, या सिक्योरिटी को लेके, ट्रस्ट को लेके तो हम बात कर ही चुके हैं। जो एक्ट्यूएटर्स और सेंसर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लिए बेटर प्रोटोकॉल्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उनके रेगुलेशन रूल्स कैसे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन रूल्स कैसे हो सकते हैं, उनके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कैसे हो सकते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं, या हम एनर्जी हार्वेस्टिंग को लेकर या लो पावर डिवाइसेस कैसे डिजाइन कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऑल दीज अबाउट IoT application and all about research area. Now platform is open to you
if you want to ask something, you may ask. Any query related to this session? Any participant wants to ask any query or any questions regarding this session? Okay, Rishi sir, very good session, sir, and well knowledgeable session. Any questions? कोई हो अगर क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस सेशन या आईओटी रिलेटेड या रिसर्च रिलेटेड, यू कैन आस्क विद डॉक्टर ऋषि सर, ओपी ऋषि सर. Okay, thank you, sir. Rishi sir. Thank you Thank to you. all the organizers. Thank you, क्या sir, आपने for मुझे a बुलाया? knowledgeable session. मुझे नहीं पता है हाँ. कि